All right. Good evening, everyone, and welcome to the session once again. The purpose of this session is twofold. Okay, one is, of course, to introduce the GDPI VAT program that I'll be running now, starting today till at least middle of March. Okay, in my experience, the peak season would be Jan 15th to Feb 15th, or let's say Feb end. मतलब ये एक max period होता है peak when most of the interviews are held. And then some interviews, of course, spill over in March, depending upon which location you are based, क्योंकि काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, आप मुंबई में हैं, बैंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं. सो थोड़ा सा स्लॉट जो है वो अलग अलग होते हैं. तो मोर और लेस फेब मिड से, सो जैन मिड से फेब एंड इज द पीक टाइम, एंड देन वी कंटिन्यू मिड मार्च तो चलता ही है, एंड देन इफ नीडेड वी कवर till March end also. So that's the whole duration of this program, which initially I had thought I'll start from 16th of December, but because last year, if you remember, जो जो scores थे वो 5 दिसंबर को आए थे. So obviously the whole thing started a little late, but this time, since it was released, or not released officially, but unofficially last Friday, so I said let's prepone this. So in that context, I wanted to introduce what all will be done, of course, in this program. तो आपको ओवरऑल ब्रॉड ओवरव्यू तो मैंने दे दिया है. थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में कि क्या होगा, क्या कवर होगा इसमें, क्या नहीं होगा, राइट, तो वो आप पूछ सकते हैं इसमें. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू बेसिक्स. ओके, बिकॉज यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्ट्रेट अवे. ये महीना आपको यूज करना है, राइट. हुएवर हैज गॉट अ गुड कॉल and expects to be at least facing the interview in good colleges, so they should start working on certain things right from now, so that एक महीने में आप अपने आप को काफी रैम्प अप कर लेंगे, राइट. सो आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लुक एट व्हाट ऑल इज अ सिलेक्शन प्रोसेस लाइक, राइट. सिलेक्शन प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में ना, ये अलग अलग होते हैं, राइट. अलग अलग इन द सेंस थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है. पर्सनल इंटरव्यू ऑब्वियसली इज अ स्टेपल एट एवरी कॉलेज, राइट. ये तो आपको देना ही देना है. देयर इज नो कॉलेज विच डज नॉट टेक अ पर्सनल इंटरव्यू. वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट या एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट, तो AWT उसको IIM अहमदाबाद कहता है, बाकी के लोग उसको वैट कहते हैं. तो ऑल टॉप IIMs, SP जैन हो गया फिर कॉलेजेस में, और भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस वैट लेते हैं आजकल. तो वैट में और राइटिंग एबिलिटी टेस्टेड, आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे एंड देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ऑन इट. AWT is a little specific kind of a thing, whereas VAT is more generic, which is more like जो भी आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है उसके ऊपर लिखना है. So we will cover this, obviously. Then we have group discussions in certain colleges. Now this, of course, has reduced to a great extent, but still there are many colleges where group discussions are held. तो आपको प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी. एक्सटेम्पोर, ओके, जैसे IIM शिलोंग है और FMS है, ये प्रोमिनेंट कॉलेजेस है जहाँ पे एक्सटेम्पोर आपको बोलने को दिया जाएगा. सो यू हैव टू स्पीक विद इन 1.5 minutes, राइट. सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दैट. ग्रुप एक्सरसाइज जनरली जो सिम्बायोसिस के इंस्टीट्यूट्स हैं, whether it is SIBM or it is SCM HRD, तो ये इंस्टीट्यूट्स में ग्रुप एक्सरसाइज कराई जाती है. And then we have case study in certain colleges, and then there is a specific test in NMIMS, which is Watson-Glaser test. This is more like a critical reasoning based test. तो इसके भी वेटेज अच्छी खासी होती है. तो ये टेस्ट भी जो लोगों ने NMAT ऑलरेडी फेस किया हुआ है, NMIMS गए हुए हैं, they would know this. So this selection process would have one or two of these or three of these. So there will be an extensive coverage, obviously, for each of these area. So we will develop the basic. We'll first of all talk about the basics in each area. Questions, तो आज हम बात करेंगे कि आपको what all are the various categories under which your questions are asked, right? क्या क्या categories होती हैं, and how to go about preparing for those, right? And then obviously I'll be looking at your answers. You have to prepare your answers where I'll be guiding you, right? जो भी आपके commonly asked questions हैं, जो expected questions होते हैं, उनके answers आप prepare करो, and then I'll give you my inputs, because you have to make those answers sound very credible, right? Even if, let's say, some of the things are maybe they're not really 100% accurate, but the way you present them should look very accurate, looks very credible. तो उसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी. GT, right? What is the basics? What is expected out of you?
what are the do's and don'ts in a group discussion, what are the measures of good performance in a GD, then how do you enhance, how do you generate content. अब ये important है कि GD हो या VAT हो या extempore हो, how do you generate content in each area, that is very important, because कोई भी टॉपिक है, किसी के ऊपर आपको बोलना है या लिखना है, तो you should know how to generate content on any topic. This we will talk about, we'll discuss in our sessions. So ये सब cover होगा. Then SOP writing, obviously when you apply to any college individually, you would be required to fill up their forms, and those forms have got many questions. Each institute comes with its own set of questions, right? So आप जब उसको भरोगे, तो obviously you would need help, right? So that help will be provided here. Then we'll have intense GD and extempore practice. We'll have these sessions primarily will be after ZAT. Okay, अभी इतनी practice नहीं होगी इनकी. ZAT के बाद में बहुत intensify हो जाता है, because obviously there's a lot of people who join after ZAT is over, and intense practice of this will start once ZAT is over. Current affairs, now this is very important, because आपको you should know almost each and everything under the sun, kind of. कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, right? Whatever is happening in geopolitics, in business world, in politics, or in any domain in any part of the world, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. तो ये तो एक करंट अफेयर्स हो गया. इसके साथ ही कुछ स्टैटिक जीके टाइप की चीज भी पूछ लेते हैं आजकल, राइट? आजकल क्या, मतलब पहले भी पूछते थे. तो आपसे आपके होम टाउन के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, आपके कंट्री तो ठीक है, तो कौन वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन एनवायरमेंट मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर है, कौन. सो यू शुड नो ऑल ऑफ दोज, राइट? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर स्टेट, व्हाट इज द population of your state, what is the on what does the economy of your state runs, right? What is your state or your hometown or something, what is it is famous for, क्या चीज वहाँ पे है, और what is something special about it. So all of those things करंट की जगह वो आपके स्टैटिक अफेयर्स हो गए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. And then we have these VAT. So I'll give you topics of VAT each day. So you need to write VAT, and then we'll see how those things are shaping up. And then you will be provided multiple mock interviews. I don't cap any such limits or put any limit on number of interviews. Whatever, if you want to give more, you are welcome to do that. ये भी इसमें देखो एक चीज और होती है कि जब आप शुरू में इंटरव्यू देने की, before you had the opportunity to give the first one, you would obviously be much more anxious, maybe a little nervous about it, and you don't know how it goes. But then once you've given a couple of interviews, then they act as your mock interviews, and then you begin to feel more and more confident, and you then start learning from your mistakes in those interviews and improvising upon them. So इसमें कोई limit नहीं है. We do offline also in Delhi, right? So whoever is in Delhi NCR or whoever wants to travel will be provided offline interviews. Online तो होंगे ही होंगे, right? And in these sessions we also do group discussions and extempore speaking also, and group interviews also, जो कि SP Jain का एक खास trait है. SP Jain has group interviews, so we also do those live offline also, right? So all these things we do, and then of course any kind of any specific test which is introduced by any institute, जैसे Watson Glaser हो गया या कोई और psychometric test है, तो ये भी हम करते हैं. So all of these things you will get by way of the class sessions, which I have shared the schedule with you all. एक schedule मैंने आपको दिया है जिसमें सारे sessions किस तरीके से चलेंगे. मोटा है, see, it's like it's a tentative schedule. We can always, depending upon the requirement, work it out here or there a little bit. मोटा वैसे चलेंगे. तो शाम को हमारी क्लासेस होती हैं. अभी फिलहाल जो है वो इस महीने हम 9 to 10:30 करेंगे, एक ही वीक में 3 दिन. And then once that and all is over, then we increase the frequency and we increase the duration, because more and more people will join, and we want to give a lot of speaking practice to each participant, and therefore we expand the hours also, and we give different slots. Whoever wants to come early, they can come early. So something like that. So that we do in the evenings, and daytime we keep for mock interviews. So जो लोग आप में से working नहीं है, they can give mock interviews on weekdays in the daytime, or जो लोग working है, they can plan it on the weekends. So all of this is provided in this particular course. Any questions? Any questions before I get into the interview basics part?
it will be best if you also discuss if at all you have any queries or any doubts or anything, क्योंकि आप अगर ज्वाइन करोगे तो obviously you may have some doubts in your mind, right? आपके दिमाग में कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो. So anything so far? You can unmute yourself and speak. Will you guide us for essay writing in ISB application? Of course, of course. I'll definitely provide help in any of your application, whether it is ISB or SPJN or IMB or A or whatever it is. Okay, there is no institute-wise segregation here. Okay, आपको अगर अपनी ISB application में डालना है तो आप मुझे अपने draft responses भेज दीजिए. I'll guide you. I can get on a call with you. I can get on a Google Meet with you or whatever you want. So definitely the help will be provided for all kind of essay writings and all. All right. So I hope that answers. Okay. So और इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. If you don't have any other question, then let's move forward. So let's go to the second part here. Second part is interview basics. तो अब इंटरव्यू बेसिक्स में हम कई सारी चीजें कवर करेंगे. पहली बात तो इंटरव्यू होते क्यों है. लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, व्हाई डू यू थिंक दे हैव इंटरव्यू. दे ऑलरेडी ग्रिल्ड यू काइंड ऑफ इन द सेंस कि कैट में आप पूरे साल भर से मेहनत करके और इतना पढ़ लिख के इतना करके आप परफॉर्म करके आए हैं इतने स्ट्रेस में. यू आउटशोन अदर्स एंड यू गॉट 99.5 6 7 8. तो व्हाई इंटरव्यूज, बताइए. एनीवन? Why do they conduct interviews? What are they looking for? Yes, Nityanand. Sir, knowledge is another thing. How you present yourself is both are different things, sir. Right. They've tested your knowledge about certain things or your intellectual capability about right in test, but they don't know what kind of a person you are, right? मैनेजर जो बनता है आदमी तो या कैंडिडेट कैन फिट इन द बी स्कूल. दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज फाइन. सी द प्राइमरली मैनेजर का काम क्या है. मैनेजर हैज टू वर्क with so many other people, like there are so many stakeholders. Like this is not a job or something which can be done in isolation, like software development. अगर किसी को आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो भी आजकल तो अकेले नहीं होता है, बट स्टिल there are certain jobs which need less interaction with that kind on that kind of a level, whereas a manager has to kind of बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करनी है और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करनी है. And therefore obviously his interpersonal skills, his communication abilities, his presentation skills, his ability to think on feet. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बार बार आएगी कि ability to think on feet. कि आप कैसे सिचुएशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग को रिस्पॉन्ड करते हो, राइट? आपको कोई भी चैलेंज आ जाता है, बिकॉज एवरी डे डे इन एंड डे आउट देयर विल बी चैलेंजेस. हाउ यू डील विद दोस, राइट? सो दिस इज व्हाट दे टेस्ट. स्पेशली जो टॉप आईएम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो टॉप आईएम्स की आप बात भी करेंगे अभी कि किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं आपसे. आई मीन सी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू व्हिच यू नो कि ये पूछ सकते हैं, राइट? यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर फॉर दोस क्वेश्चंस जो अभी हम देखेंगे. जैसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, राइट? यू आर टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ or why you want to do MBA and what are your goals and stuff like that. What are your strengths, what are your weaknesses, what are your achievements in life, what are your regrets. ये सब चीजें जो है आप अपने बारे में कितना जानते हैं वो सब आप प्रिपेयर करके जा सकते हो. लेकिन वहां पे आपको उसने जो भी कुछ भी ऐसा पूछ लिया जो कि अनसेटलिंग हुआ, राइट? तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड. ओके, ये नहीं है कि आप को हर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर पता होना ही चाहिए. नो, बट द वे यू रिस्पॉन्ड टू इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या आप स्ट्रेस में आ रहे हो? कि आपसे थोड़ा सा अगर उसने आपको अनईजी किया तो आप स्ट्रेस में आ गए, देन दैट शोज लिटिल लैक ऑफ दैट कैरेक्टर विच दे आर लुकिंग फॉर. बिकॉज अगर आप टॉप आईएम्स जो आपको ग्रूम कर रहे हैं वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने की बात कर रहे हैं, राइट? Because see, ultimately you are not going to spend your time in an IIM, right? Your IIM is basically an interim place which will lead you to a corporate, and that corporate में जो चाहिए उनको वही चीज के लिए आपको मोल्ड किया जा रहा है वहां पे. तो क्या आपके अंदर वो स्टफ है which can withstand all of that? वो टेस्ट करने की कोशिश की जाती है, राइट?
So that's why interviews are extremely important, that they want to have a look at the candidate that they are selecting. Now इंटरव्यू पैनल जो होती है आपकी, तो इंटरव्यू पैनल जो है वो अलग अलग होती है, मोस्टली दो या तीन तीन लोग होते हैं, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ज्यादा भी हो जाते हैं, बट जनरली आई हैव सीन दैट तीन लोग होते हैं, या दो लोग होते हैं, मतलब तीन, दो तीन देखे हैं मैंने, तो मोस्टली जो मैंने वही सुने हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, तो प्रोफेसर तो होते ही हैं उनके, राइट, उनके देन alumni होते हैं, एंड देन दे हैव सम साइकोलॉजी, दे हैव सम पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री आल्सो, so they have got a set different kinds of people who bring different things to the table. So that's the interview panel. Types of interviews कितने होते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो हमें दो टाइप के इंटरव्यू, अगर हम मतलब दो एक तरह से डिवाइड बात करें, कैटेगराइज करें, तो इंटरव्यू दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो इंडिविजुअल इंटरव्यू हो जाएगा और एक ग्रुप इंटरव्यू हो गया, राइट। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, राइट, इनफैक्ट बारिंग एसपी जैन, दे कंडक्ट इंडिविजुअल इंटरव्यूज. SP Jain conducts group interview, which is a little unique phenomenon out there. So they will have 6 people in a group or 5 people in a group, and then they will, out of that first round में, उसमें भी 2 राउंड करेंगे, वो पहला राउंड सिलेक्ट करेंगे, फिर then they will put you to the second round and then further. तो इस तरह से ग्रुप इंटरव्यूज करते हैं. So that's one. Obviously here things are a little different. The capability is a little different, and what they are looking for is also a little different. यहाँ पे थोड़ा अलग होता है. Then you have a regular interview or a stress interview, right? रेगुलर इंटरव्यू में आप आराम से बैठे हुए हो, कोई आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, यू आर आंसरिंग क्वेश्चंस, एंड दे आर आल्सो जोकिंग अराउंड विथ यू एंड वेरी साउंडिंग कैजुअल. स्ट्रेस इंटरव्यू में वो आपको, दे वांट टू मेक यू क्वाइट नर्वस, अनसेटल्ड, एंड दे वांट टू इंक्रीज योर डिस्कम्फीचर. तो उसके लिए अलग अलग पैतरे वो यूज करते हैं, राइट. तो कई बार क्या होता है कि there are two kinds of candidates, right? One is जो कि ठीक है, normal, easy going, they're nothing. Some people, they want to be extra smart. Okay, I've seen so many students या candidates जो होते हैं, वो थोड़ा अपने आप को होशियार ज्यादा समझते हैं. उनके लिए ये स्पेशली एक नॉर्मल इंटरव्यू को भी स्पेशल वो स्ट्रेस बना दिया जाता है, बिकॉज द इंटरव्यूअर जो होता है उसको समझ आ जाता है कि थोड़ा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम दे वांट टू हैव फन एट द एक्सपेंस ऑफ दिस गाय. So one has to be, on the guard also, that you don't come across as somebody who's kind of, even an iota of arrogance आपके अंदर हो, या आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो. तो वो सब चीज अगर आ गई तो फिर स्ट्रेस इंटरव्यू है. कई बार वैसे भी स्ट्रेस बनाने की कोशिश करते हैं, आपको देने की कोशिश करते हैं. दे विल नॉट लुक एट यू, दे विल कीप टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल स्टार्ट ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, और आपको टोटली इग्नोर कर देंगे, या आपको बोलेंगे अरे ये भी नहीं आता तुमको, अरे तुम्हें आता क्या है यार, तो तुम क्यों आ गए यहाँ पे यार उठ के, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बोल देंगे वो. तो आपको इससे घबराना नहीं है, राइट. यू डोंट हैव टू फील दैट इट इज, यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनल. आपको उसको वहीं पे रखना है, एंड यू हैव टू कीप योर विट्स अबाउट यू, कीप योर स्माइल अबाउट यू. यू डोंट हैव टू सल्क और स्टार्ट फीलिंग बैड, जैसे कि आपसे पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही हो, ऐसा नहीं. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इंटरव्यू दैट यू विल हैव टू हैंडल. ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू कितनी है, तो अब ये देखो अलग अलग है. इनफैक्ट एज शॉर्ट एज 5 minutes ऑल्सो. देर आर मेनी टाइम्स गैप इंटरव्यूज होते हैं, जो या फिर NMIMS में देखा गया है, NMAT में है, 7 मिनट 8 मिनट में वो इंटरव्यू खत्म कर दिया, 5 मिनट में भी कई बार किया हुआ. तो कई बार वो लंबा भी हो जाता है, राइट. इट कैन लास्ट, बट ऑन एवरेज 20 minutes, 15-20 minutes. अच्छे आयाम्स वगैरह में थोड़ा और ज्यादा चल जाता है, थोड़ा और डिटेल में वो आपको खुद के देखते हैं. तो इट कुड बी एनीथिंग. नाउ ड्यूरेशन क्या लॉन्गर बेटर है या शॉर्टर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं. देयर इज नो कोरिलेशन. ओके, सपोज समबडी सेज अरे मेरा तो 5 ही मिनट में खत्म हो गया, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है. या किसी को और मेरे साथ तो 30 मिनट बैठे, वो दे ग्लोट ओवर इट, दे फील that because they spent 30 minutes, so definitely he's got a great chance. ऐसा कुछ नहीं है, right? There is no correlation, so you don't have to feel or look into it more than that. Okay. Now we'll quickly talk about how do you prepare for that. So you need to have so there's a dress code. Why I'm saying this is that you need to think right from now. It's not कि फिर suddenly पता पड़ा अब तैयार नहीं है, आपको कॉल आ गया जनवरी 15 या 20 के आसपास के इंटरव्यू का, और आपके पास में you don't have the proper attire and all that. तो वो आपको टेक केयर करना है that you have a formal attire, right? The men, the guys, the boys should be in a proper suit with a proper tie, right? And black shoes, lace वाले, not really those loafers or moccasins, right? तो ये आपका एक ड्रेस कोड है. और women also, for them also, so there's a dress code. Then how you enter and make your initial, because see, first impression is the last impression, ऐसा कहते तो है, right? And a lot of that is true also. The way you, come inside, the way you greet them, the way you handle yourself initially also matters a lot. फिर आप किस तरीके से बैठेंगे उनके सामने, you have to
cross your legs and sit with your hands in your lap. You don't have to put your hands on the table which is there. If there's a table between you and the interviewer, you don't have to put your hands on the table. You can't put your stuff on the table. आपकी फाइल और आपकी जो बैग है, अगर आप बैग लेके जा रहे हैं तो बैग को साइड में नीचे रखेंगे. And you don't have to put anything on the table, put your elbows on the table or anything. And body language आपकी कैसी रहेगी, right? You should look and face in the eye. You can't avert your gaze, right? अगर आप इस तरफ इधर उधर देख के आंसर कर रहे हैं, no. And you have to kind of, जैसे तीन लोग बैठे हुए हैं तो your eyes should sweep across when you are answering a question. Of course, it should start with addressing the person who asked the question, but then आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो राइट, यू शुड आंसर टू एवरीबडी. देन इसको स्टार्ट करके इसने क्वेश्चन पूछा है तो सभी को आप आंसर करेंगे. लैंग्वेज ऑब्वियसली इज टू बी यूज्ड विच इज इंग्लिश. ओके, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. उसमें आप हिंदी, इंग्लिश या ऐसा ना ही यूज करें. ओके, इवन इफ दे आस्क क्वेश्चन इन हिंदी, ओके, समटाइम्स दोज गाइज, ओके, दे आल्सो काइंड ऑफ वो हिंदी में चालू हो जाएंगे या फिर वो कोई और लैंग्वेज में. सपोज करो यू आर बंगाली, तो वो दे माइट स्टार्ट विथ यू इन बंगाली. यू नेवर नो, वो भी अगर बंगाली है तो आपको लेकिन इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करना है. अनलेस ही स्पेसिफिकली सेज नहीं नहीं आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो यार, आप इसमें बोल के दिखाओ, देन इट्स डिफरेंट इशू. बट इफ ऐसा कुछ नहीं बोला तो आपको उसमें इंग्लिश में ही बात करनी है. डू आई नीड टू प्रिपेयर सीवी? नो, नॉट रियली. जरूरी नहीं है. अगर बोला गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है. आपने फॉर्म में डिटेल अपने भर दी है, दैट्स गुड इनफ. सर्टिफिकेट फाइल है, ठीक है. इसको हम अभी बहुत डिटेल में नहीं है, इसको हम जब हम जाएंगे उस टाइम पे हम बात करेंगे तब उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे. पीआई प्रोसेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what is PI actually, right? See, ultimately, if you see, it's a selling process for you. So just as एक प्रोडक्ट है उसको आपको बेचना है, तो यहाँ पे आपको अपने आप को बेचना है, right? And how do you sell? How do you sell? You don't go and talk about yourself in vacuum. आपको पहले तो फिट भी बनाना है, know what they are looking for, and then you have to say, and you have to know yourself and then match. कि वो जो ढूंढ रहे हैं एक तरह का कैंडिडेट क्या आपको हो, right? So and they are trying to select you. See, interview is not a kind of elimination. जैसा नहीं है कि आपको देख के वो निकालने के लिए आपको बुलाया उन्होंने. So just keep one thing in mind, that interview is not a situation wherein they called you to reject you, right? They want to select you. They want to select you, and you have to give them reasons for selecting you, right? It is up to you whether you are able to show to them that you are exactly what they are looking for, right? इसमें आपकी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स ये यहाँ पे की बन जाती है. ओके, नाउ हाउ यू आर जज्ड. ओके, हाउ यू आर जज्ड. सो यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ब्रेड्थ एंड डेप्थ. सो एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर इज मोर ऑफ अ जनरलिस्ट, राइट? एक मैनेजर जो होता है वो जनरलिस्ट होता है. तो मैनेजर को हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए दुनिया में. मतलब ये नहीं है कि कल को पता पड़ा कि सीरिया में जो रेबल्स हैं उन्होंने जाके एलेप्पो सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसने पूछा कि उससे क्या होगा. तो आप बोलोगे उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे सीरिया से, मुझे एलेप्पो से, मुझे बशर अल असद से मुझे क्या करना. ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स, राइट? एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट ब्रेक्स आउट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट्स business everywhere. So how much and to what extent it affects your business and your sphere of activities, you should know very well. तो आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, right? And depth also you should have. Theoretical, right, versus application oriented. So obviously MBA is very different from other courses in the sense that it's totally application oriented, और इसीलिए पूरा जो स्टडी है उनकी केस स्टडी बेस्ड होता है मेथड. सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते हो आप बुक्स में कि बुक्स पढ़ ली, जैसे आप अपना ग्रेजुएशन में, नॉर्मल ग्रेजुएशन में हम थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर अस. तो इट डजंट वर्क लाइक दैट हियर, राइट? यू हैव टू वर्क ऑन केसेस, मल्टीपल केसेस इन अ डे. You have to read cases, you have to prepare that what kind of problems the companies faced and what kind of solutions could be there and what actually did they do to come out of that. तो वो सब application oriented होता है. Then linked to current awareness, right? So what is your awareness all about? Trump is the president elect, right? He's going to assume his office on 20th of January. तो Trump के आने के बाद में क्या होगा? Trump has already sounded out that he will impose tariffs on Canada, impose tariffs on Mexico, and he says that if you guys at BRICS do not fall in line and you talk about your BRICS currency, then I will impose 100% tariffs on you. तो अब ये सब चीजें आपके और आपके बिजनेस के लिए क्या ऑगर करती हैं?
That's extremely important, right? You should know how does this affect your specific business? How does it affect your economy? How does it affect your markets? Right? Anybody who's an MBA aspirant or a management student or even a manager should know how the world markets are run, what is the current status of the markets, right? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. Then ability to apply in new situations. देन योर फेवरेट सब्जेक्ट्स वर्क एरियाज, राइट? सो अब इसमें हम बात करेंगे जब क्वेश्चंस की कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एकेडमिक्स इज वन एरिया, राइट, वेर यू आर टेस्टेड. बहुत सारे लोग ये वंडर करते हैं और ऑब्वियसली दे डोंट लाइक इट बिकॉज दे थिंक दैट जब हमने एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, जब हमने एक बार 10वीं 12वीं कर ली, तो फिर क्या जरूरत है हमारे से एकेडमिक्स पूछने की. ओके, क्वेश्चन आ गया. इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मेन टू गेट द बियर्ड शेव्ड बिफोर द पीआई? I would not say beard shaved. Beard should not be unkempt. Should not be kind of, आपको एक ऐसा लुक नहीं देना चाहिए कि एक अनग्रूम्ड अनकेम्प्ट टाइप का लुक नहीं देना चाहिए. अगर आप बेड मेंटेन करते हो तो प्रॉपर तरीके से उसको होनी चाहिए वो. और अगर नहीं करते हो फाइन, बट ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप बेड लगा के जाओगे तो आपको निकाल के बाहर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं. इट शुड सूट योर पर्सनालिटी, यू शुड लुक योर बेस्ट, दैट्स ऑल इट मैटर्स, राइट? एंड इट शुड प्रेजेंट यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, सो एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एकेडमिक्स वो टेस्ट करते हैं. एकेडमिक्स क्यों टेस्ट करते हैं, मैं इसका कारण बता दूं. कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाई डू दे टेस्ट एकेडमिक्स? टेल मी. What is the reason that these institutes test your academics and they ask you questions on your subjects in your graduation, in your even in your school at times? क्यों पूछते हैं? Sir, just अरे to check देखो, how diligently we have अक्षर studied भैया during वाले our जो graduation. अंकल है ना, उनका ठीक है, सही बता रहे तुमको. बट दीपक अंकल का नहीं है कोऑपरेटिव में ठीक. Sorry, there was some here. So somebody was saying, sorry, I think somebody else, there was a crosstalk. So yes, Ayush Yes, was sir. saying something. Yes, Ayush, go ahead. Yes, sir. I was just saying that just to check the diligency of a student or the candidate, how efficiently he has grasped the subject of his graduation. So that's maybe one of the parameter. Okay. So how diligent he was while he was studying. Okay, that's a good point. Anyone else would like to add on to this? देखो, होता क्या है ना कि there are two kinds of MBA colleges if you ask me. There is a kind where it's very very rigorous. मतलब वहां पे जो आप जाओगे तो जो आपकी हालत होगी वो काफी, I mean, initial 6 months जो बताए जाते हैं, it's very tough place to survive. Once you survive for 6 months, then things become smoother. I'm sure many of you are on LinkedIn and you would be reading the posts shared by so many of people who are at the top IIMs. तो I'm sure आपको आइडिया होगा. अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि जो रिगर है वहां पे, तो वो रिगर हर एक के बस की बात नहीं है, एटलीस्ट एट द टॉप और एटलीस्ट एट द गुड इंस्टीट्यूट. तो अगर सपोज करो कि आपने ग्रेजुएशन अपनी करी है ऐसे ही, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, ठीक है, आराम से, मौज मजे, यूनिवर्सिटी लाइफ, स्कूल से निकलने के बाद में सडनली फ्रीडम, सो पीपल आर नॉट वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज, एकेडमिक्स एंड ऑल. और एक आध साल 2 साल ऐसे निकल जाते हैं, देन बाय द टाइम दे गेट सीरियस इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द कॉलेज. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव टेकन कॉलेज एज फाइन, ऐसे चलता है. तो वो एटीट्यूड वहां पे नहीं चाहिए उनको, बिकॉज एज पर देम यू हैव टू रियली बी वेरी 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 रिगरस इन योर अप्रोच देयर, और बहुत डिलीजेंट, और बहुत आपको वहाँ पे आसान नहीं है वहाँ पे निकलना. घुसना तो चलो ठीक है, घुस गया, लेकिन घुसने के बाद आगे निकलना बहुत मुश्किल है. और इसके लिए वो चाहते हैं कि हमें ऐसे कैंडिडेट्स मिले जो कि एकेडमिक्स में भी स्ट्रांग हो, मतलब दैट शोज दैट दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे आर कट आउट फॉर दिस. Otherwise, they think that if we don't test this area, then we might get some students who are not cut out for this. जिनके अंदर ये वो स्टफ नहीं है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके. जैसे आपने, I mean, I'm sure many of you would have heard of stories, sad stories at IITs and all, lot many of the top institutes where students are not able to cope with the kind of load or stress or pressure. तो उसके बाद फिर untoward incidents होते हैं. तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का हो, राइट? तो दे बेसिकली इसीलिए वो एकेडमिक्स को भी टेस्ट करते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई दे डू इट, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज आपकी टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप कितना रिगरस थे और क्या वो आपको कर पाओगे वहां पे. Okay, so that's why they test you in your favorite subjects. Then your work areas. Yes, Arman.
सर ऑल्सो इसमें तो कुछ काफी लोग जो एमबीए ट्राई कर रहे हैं उसमें काफी लोग तो अभी कोविड वाले बैच के भी है ना, तो दे माइट बी एबल टू टेस्ट कि भाई तुमने एक्चुअली में पढ़ाई करी है कि नहीं। करेक्ट, दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट, यस, कि आपने पढ़ाई वढ़ाई करी है कि नहीं करी है, करेक्ट। Okay, then work areas. Obviously, people who are working should be very, very thorough, right? With your work ex, आपके पूरा मतलब उसमें भी हम बात करेंगे कि उसमें भी क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या एरिया में आपको प्रिपेयर करना है विथ रिलेटेड रिलेटेड टू योर वर्क। एंड यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, राइट? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना जरूरी है। अब आप देखो, जैसे वहां पे एक इंजीनियर है, राइट? तो मैंने इंजीनियर भी लैंड अप इन टॉप IIM और उसको वहां पे अकाउंटिंग पढ़ना है, राइट? पहले सेमेस्टर में, विच इज टोटली समथिंग विच ही हैड नॉट स्टडीड, राइट? उसको इकोनॉमिक्स पढ़ना है जो कि उसने कभी अपने करिकुलम में नहीं पढ़ी। उसी तरह से अगर कोई कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या अकाउंटिंग का स्टूडेंट है या कोई और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और उसको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेट्स से स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है, तो वो उसके लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आपको क्रॉस फंक्शनल होती हैं, तो उसके लिए भी आपको वो टेस्ट करते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू डू दैट और ओके। तो ये रीजन, देन हाउ यू आर जज्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, सो योर द वे you present yourself, effective and efficient, right? Efficient means use of less words, not really rambling about whatever you're saying, and effective means you have got good arguments to present your case. Verbal and non-verbal, right? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, कंफर्टेबल हो और यू आर स्क्वर्मिंग, और मतलब बिल्कुल ही आप मुश्किल में पड़े हुए दिख रहे हो। एंड देन यू हैव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, बोथ बोथ स्किल्स आर टेस्टेड कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कई लोग सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। Then goal clarity and consistency. This is where your why MBA and goal kind of a thing is very important. That you have to weave a coherent story. कि ऐसा नहीं है कि सडनली आज मूड हुआ कि चलो MBA कर लेते हैं, कुछ और करने को नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है, राइट? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ परफेक्ट वर्ल्ड हियर। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हियर। देयर आर पीपल हु वुड हैव ट्राइड टू गेट इनटू समथिंग एल्स, इट डिडंट वर्क आउट, सो ऑब्वियसली दे थिंक दैट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू नाउ परस्यू MBA। बहुत सारे लोग हैं आजकल मैं देख रहा हूँ, राइट? A different set of people now who are pursuing CAT and MBA, which is the people who maybe tried their luck at UPSC. तो अभी suddenly I'm seeing the last couple of years बहुत सारे लोग UPSC, because UPSC is a different nut to crack altogether different nut to crack, and it needs, I mean, I don't know what kind of luck it needs, because the odds are so stacked heavily against you that anything goes wrong and you are out and you wasted or spent so many years of your life there. तो बहुत सारे लोग वहां से आ रहे हैं, right? So nothing wrong. The point is how you are able to link what you've done in the past to what you are currently and where you want to go. तो ये क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आपको प्रेजेंट करनी है। तो यू हैव टू वीव अ कोहेरेंट स्टोरी। ये कोहेरेंट स्टोरी हमें बनानी है, whatever it is, किसी की भी कोई भी स्टोरी हो सकती है। देयर आर पीपल आई हैव कोच्ड who are doctors, right? So डॉक्टर भावना रजोरा आई एम अहमदाबाद में अभी, तो शी क्लियर्ड ऑल, आई मीन उसके सारे के सारे कॉल्स थे उसको। तो अब डॉक्टर से, तो देन देर आर 5 डॉक्टर्स इन आई एम अहमदाबाद इन हर बैच, शी सेज। तो उसी तरह से अगर आप कोई और फील्ड में हो, कोई मिलिट्री वाले होते हैं वो आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दे आर लुकिंग, इनफैक्ट द डाइवर्स बैकग्राउंड, the more diverse the background is, the better it is for you or your chances of getting into at least IIM Ahmedabad। क्योंकि IIM Ahmedabad जो है वो कई लोगों को 88 परसेंटाइल में भी कॉल देता है, जिनका की बैकग्राउंड बहुत ही यूनिक सा होता है। उन लोगों को वो 88 परसेंटाइल में बुला लेते हैं, बिकॉज दे वांट अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ अ बैच। तो ऑब्वियसली अब इंजीनियर्स क्यों इसमें चैलेंज फेस करते हैं, जो हम जेम कैटेगरी को बोलते हैं कि इट इज द काइंड ऑफ धब्बा, कि जेम आपके ऊपर लगा हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि इंजीनियर्स जो है वो दे आर डाइम अ डजन, ऐसा उनको लगता है, एंड दे डोंट वांट टू स्टैक अप देयर होल बैच विथ इंजीनियर्स, राइट? दे वांट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, बिकॉज दैट्स हाउ दे फील दैट द बैच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव। तो ये सब चीजें आपको करनी है, बैकअप प्लान्स। कई लोग, आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव टेकन अ ब्रेक, दे हैव टेकन अ गैप, राइट? सबैटिकल कुछ लोग ले लेते हैं, तो आपको वो जस्टिफाई करना है। एंड देन व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, देयर नथिंग रॉन्ग और राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या गैप ईयर रहने से हमारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। देखो, गैप ईयर रहने से आपके चांसेस कम जरूर हो जाएंगे, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा। ओके, आई विल नॉट से दैट चांस कम नहीं होता, लेकिन अगर आपके चांस एक तरह से कम होते हैं तो आप दूसरी तरह से उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो rule that says that just because you had a gap year or you had a gap this thing, you can't get into the college A or B or C. I don't
बिलीव इन दैट एंड इट डजंट हैपन. ओके, आप दूसरे तरीके से अपना केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, किस तरीके से वो आपको सोचना है. That okay, if let's say I have something which is let's say weighing against me, then what should I stack up that compensates for this, right? And does it much more effectively. तो वो हमें प्लान करना है, वो हमें सोचना है, ठीक है. लेकिन हमें बैकअप होना चाहिए कि ठीक है, अगर सपोज करो नहीं हुआ यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, और आपको बैकअप उसको आर्टिकुलेट भी करना है, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स यू आर जज्ड, देन योर बेसिक पर्सनालिटी, राइट, योर एम्बिशन, योर वैल्यूज, बिलीव्स, because integrity आप में कितनी है, what are the traits that define you, your personal disposition, your interpersonal skills, team skills, openness to ideas, problem solving, right. what if तो suddenly आपको कुछ गेस्टिमेट का क्वेश्चन दे दिया उसने, या सडनली आपको कुछ मैथ की प्रॉब्लम. देखो आजकल एक चीज और बहुत हो रही है कि मैथ की प्रॉब्लम भी दे देते हैं. जैसे आई एम अहमदाबाद में, लास्ट ईयर आई हैड सम स्टूडेंट्स हु रिपोर्टेड कि उन्हें काफी हद तक मैथ के ऊपर ड्रिल किया गया, प्रोबेबिलिटी के ऊपर दे दिया. उन्हें पूछा गया कि आपको कितने कॉल आए हैं, अच्छा इतने कॉल आए हैं, ओके, तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि यहाँ पे आपका नहीं हुआ, यहाँ हो गया, तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए. तो इट काइंड ऑफ कॉल्स यू टू हैव अ एनालिटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू थिंक ऑन द फीट. कैसे आप इमीडिएटली फिर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे. फिर उसको बोल दिया गया कि ज्योमेट्री के ऊपर पूछ लिया गया कि ज्योमेट्री में, अच्छा चलो अब ज्योमेट्री पूछते हैं आपसे, तो ज्योमेट्री में पूछ लिया गया कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इसके अंदर कौन सा सबसे बड़ा वो कितना आ सकता है, या समथिंग लाइक दैट. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. देन दे कैन इवन आस्क मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. नाउ समबडी माइट गेट इंटिमिडेटेड बाय ऑल दिस एंड से कि यार ये हमें नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं. ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसको भी आया ही था, सारे क्वेश्चन आते भी नहीं, राइट. द वे यू हैंडल योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर. तो ये इसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो उसको कैसे हैंडल करना, राइट. जैसे वो उससे पूछ लिया कि यार अच्छा आप यहाँ से आ रहे हो तो वहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है. अब वो उसको डिस्टेंस ही नहीं पता. मतलब सी, इफ यू डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग एंड वेयर यू गॉन फॉर द इंटरव्यू, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कोई पूछ लिए उनसे. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे वाई एमबीए और टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछे, वो ये सभी पूछ लेगा, और अच्छे कॉलेज में वो ये सब ज्यादा पूछते हैं. ओके, सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन दे आर लुकिंग फॉर. ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना हुआ है कि ये चेकलिस्ट लेके बैठे हुए हैं कि हाँ ये इसका ये है, अच्छा ये इसका है, अच्छा है, हाँ इसको ले लो. ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट. तो खाली इंटरव्यू के बेसिस पे भी कोई रिजेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी के भी पैरामीटर्स हैं, राइट. वी शुड नो college how much gives how much weightage to interview, how much weightage it gives to the other things, right. वो भी सब important है इसमें. So that's the thing. Now before we go ahead and look at the different categories of questions on which we should start preparing, any questions here, any questions on so far that Ye we discussed? Yes. Yes, sir. I do have one question, sir. So majority of the interviews are offline only, or there are some online interviews as well, Good particularly question. on. Yes. तो मोस्टली अब देखो धीरे धीरे ऑफलाइन का जमाना वापस आ गया है ना. एक मतलब अगर हम कैट 2020 की बात करेंगे, 2020 में तो सभी ऑनलाइन हो गए थे, राइट. 20 मतलब जब हम 21 में इंटरव्यू दिए थे जिन लोगों ने, देन 22 में जिन्होंने इंटरव्यू दिए तो मोस्टली अगेन फिर ऑनलाइन ही थे, बिकॉज उतना वो नहीं हुआ था, थोड़े बहुत ऑफलाइन होने लगे थे. लेकिन 23 में देखा गया कि अगर हम जितने भी आईआईएम्स की बात करें टॉप, ओके, वेदर इट वाज ए बी सी एल के आई, शिलोंग, बॉम्बे, सबके सब, रोहतक, वो सब ऑफलाइन थे. ओके, और कैप के इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं. मतलब लास्ट ईयर तक कैप जो राउंड होता है, कैप के लोग वो ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं. अब अगर आप बाकी कॉलेजेस की बात करें तो एसपीजेएन वाज ऑफलाइन, एफएमएस इज ऑलवेज ऑफलाइन, मतलब एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर से ऑफलाइन ही है. उसके अलावा आप बात करें एमडीआई, तो एमडीआई इज ऑल्सो ऑफलाइन. बात करें आईएफटी, वो भी ऑफलाइन है. सिम्बाइसिस, एसआईबीएम इज ऑनलाइन. ओके, एसआईबीएम वाज द इंस्टीट्यूट, वाज वन अगेन एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट जो कि ऑनलाइन किया था. एनएमआईएमएस मुंबई कॉल्स यू टू मुंबई, राइट. सारे लोगों को मुंबई बुलाया जाता है और उन्हीं के बिल्डिंग में वहीं पे सबका इंटरव्यू होता है. तो I would say that 80 to 85% institutes this at this stage, at least last year, did
offline, and I don't see any reason why it would reduce. In fact, it might even increase. तो ऑफलाइन ही हो रहे हैं मोस्टली अब. ओके. Okay, thanks, sir. राइट. बट अगेन अब आप मेरे से पूछो कि क्या हमें फिर प्रिपरेशन में मतलब ऑफलाइन ही हमारे लिए रास्ता है या नहीं है, तो आई डोंट एग्री विद दैट एक्चुअली टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज yeah, I mean, if you get a couple of offline interviews, it's fine. But I mean, I've honestly, if you ask me, I've not seen any material difference uh, happening. Okay, between people who, let's say last year I provided support to so many students all around the country, and many of them just appeared online. They never came and took an offline from me. There were some who came and took offline who were present in Delhi NCR. लेकिन ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं बन सकता कि जो लोग ऑनलाइन जिन्होंने लिया वो उनका कुछ देवर एट अ डिसएडवांटेज और जिन्होंने ऑफलाइन लिया देवर एट एडवांटेज. तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है. Yes, it helps, but then it is not something which one needs to obsess about, is all I'll say. Um, okay, so I hope that answers. Any other question anyone has? Great. Sir, one more question I have actually So, regarding the last point which you mentioned in the slide, right? Regarding coherent story, yeah. like the interviewer should believe to your story. So generally, like in job interviews, we see like people see, right? If the candidate was like maybe going for higher studies and all, he gave that exam. So why should we take that a particular candidate to our company? So in this case, basically, we are going on a non-technical side from a technical background, from an engineering background. If I gave certain examination, say for example, I gave a GATE examination and qualified also that to secured a rank in top 10 or something like that. Still, why I am going for a non-technical side despite of going on a MTech side? That's kind of a very particular narrowed question, but how do we justify such situations Okay. to let Right. them believe that Good, why good it's question. good? Right. So see, everything, as I said, past, present, future. It all hinges upon what is your goal. Right? Now, let's say, suppose somebody is a software developer or a software engineer. और उसका गोल अगर यही है कि उसे सॉफ्टवेयर डेवलप ही करना है, मे बी द होल स्केल एंड मे बी द काइंड ऑफ कंपनी दैट ही वर्क्स फॉर चेंजेस, मे बी द ज्योग्राफी दैट ही देयर. चलो आज इंडिया में है, कल को उसको जाके गूगल में वहां पे जाके सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या मे बी उसको अमेजोन में जाना है या कहीं पे ऐसी कंपनी में जाना है, तो दैट्स अ डिफरेंट गोल. But somebody wants to move into roles, which you would not be if you are continuing in your present role as a technical or as a technical resource. तो एक टेक्निकल रिसोर्स जो है वो मैनेजमेंट में घुसना उसके लिए मुश्किल है. राइट. एक टेक्निकल रिसोर्स को किसी भी बड़ी कंपनी में टू गेट इनटू दोज काइंड ऑफ रोल्स वेयर इन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बिग डिसीजंस अबाउट वेयर द कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वो तो बाद में आएगा वेयर द कंपनी इज हेडेड, बट देन वेयर योर डिपार्टमेंट इज हेडेड, where your team is headed, right? Those kind of decisions which are much broader in their scope. आप जो टेक्निकल रोल में अगर होते हो तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ही लिमिटेड इन स्कोप होंगे. राइट. आपके कोई डिसीजंस मतलब जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो आपको जो लीवे दिया जाएगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा. But if you are aiming for those kind of roles wherein you are responsible for driving the direction in which the company grows or goes, what kind of let's say new areas which the company wants to get into, तो उस तरह की जो डिसीजन मेकिंग अगर मैं आपको रोल्स में घुसना है तो आपको इससे काम नहीं चलेगा फिर. और अगर आप जाओगे भी तो यू विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच देयर. बट एमबीए जो है वो आपको क्या करेगा, एमबीए आपको पूरा बिजनेस का वो एक्सपोजर देगा यार अल्टीमेटली, क्योंकि आप जो आज कर रहे हो अपने रोल में बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस है आपका, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. लेकिन एमबीए आपको बताएगा कि यार आप जो है वो उस रोल में कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो. दैट मीन्स एमबीए विल गिव यू द स्किल्स, इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क, इट विल गिव यू द प्लेटफॉर्म टू पिच फॉर दोज काइंड ऑफ पोजिशन विच कैन लीड टू दोज गोल्स. तो आपको अपना गोल बताना है उसको कि भाई मेरा गोल ये है, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अगर यहीं पे करना है तो मुझे तो मैं यहीं पे पहुंच पाऊंगा. लेकिन मुझे तो ऐसे रोल्स हैं, यू शुड हैव लेट्स से इन योर माइंड वेरी क्लियर आइडिया कि जो लोग, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जाके देखना चाहिए कि आपके जैसे प्रोफाइल वाले लोग लिंक्डइन पे जिन्होंने आई एम
अच्छे आईआईएम से एमबीए किया है, तो फिर उनके भी करियर ट्रेजेक्टरी क्या है, राइट, वेयर दे आर करंटली। तो आपको अपना फिर उसी तरीके से बनाना है वहां पे, उनके सामने प्रेजेंट करना है कि देखो मुझे इस तरीके, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू नेम दोज पीपल, बट यू हैव टू से दैट आई वांट टू हैव अ करियर ट्रेजेक्टरी लाइक दिस, एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन दैट व्हाई आई एम इंक्लिन टू परस्यू एमबीए। तो आप वो जब समझाओगे उसको, तो वो बहुत ही लॉजिकल स्टोरी है वो आपकी, राइट। उसमें वो होल निकालने की कोशिश करेगा, उसमें बोला अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं, बट यू हैव टू देन स्टिक टू योर थिंक कि यार मेरा तो गोल ये है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि आपकी जो ट्रेन है वो अगर जा रही है जो मुंबई, और आपने गोल बनाया है कि यार मुझे तो मुंबई नहीं जाना, मुझे तो बैंगलोर जाना है, तो एट सम पॉइंट ऑन द वे यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, राइट। तो ये वो पॉइंट है जो एमबीए है, कि आपकी ट्रेन जो करंटली आप चल रही हो वो जा रही है मुंबई की तरफ जा रही थी, आप जब चालू हुए थे तो मुंबई की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपको तो जाना बैंगलोर है, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा ना कहीं पे अपना ट्रैक। तो वो जो जंक्शन है वो आपको एमबीए है, जो कि आपको अब बैंगलोर लेके जाएगा। अब आपको मुंबई नहीं जाना, तो आपको उसको बताना पड़ेगा भाई मुझे तो बैंगलोर जाना है। हाँ मैं चला था ठीक है, लेकिन जाते जाते मुझे रियलाइज हुआ कि यार बैंगलोर जाने से मेरा ज्यादा फायदा है, और मैं भी जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, आई कैन ऐड मच मोर वैल्यू टू बैंगलोर देन व्हाट आई कैन ऐड इन टू मुंबई। Therefore, it is mutually beneficial that I also get into the train that leads me to Bangalore, and therefore I want to change at this junction. इस तरह की एनालॉजी जो आपको मतलब अगर समझ में आई तो आपको बना के दिखानी होगा। That's it. Does it make sense? Uh, yes, sir, it made sense. Thank you. So, I have a question. Yeah. Supposed to construct a coherent story that they buy into, because last year I appeared for MDI's interview, Hmm. but they didn't really buy my story, and they weren't really convinced Hmm. about how and why I wanted to have an MBA. Right. तो ये तो देखो अब मतलब आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट स्टोरी यू प्रेजेंटेड, आई डोंट नो हु गाइडेड यू, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डिड इट टर्न आउट टू बी, एंड हाउ डिड यू प्रेजेंट इट। बिकॉज देखो ये भी अब यार एक पिक्चर है, ठीक है, कि दो भाई बिछुड़ गए कुंभ के मेले में, और उसके बाद में वो मिले 20 साल बाद, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। अब ये स्टोरी दो डायरेक्टर हैं, एक मनमोहन देसाई थे जो इसी स्टोरी की को हिट मूवी बना देते थे, एक दूसरे कोई है जो इस स्टोरी को फ्लॉप बना देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ना, डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, और वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है वहां पे, तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स हियर। नाउ आई एम नॉट सेइंग, यू नो, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट आप अगर लेट्स से इफ आई एम द डायरेक्टर एंड देन दिस मूवी विल बी अ सुपर हिट, अब वो तो नहीं, कमिट तो नहीं कर सकता मैं, बट एटलीस्ट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, राइट। वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट कि हाँ यार ये स्टोरी आपकी नहीं चली तो उसमें क्या लूप होल था। आपको क्या लगता है, मतलब यू ऑल्सो वुड हैव एनालाइज्ड दैट, यू नो, वेयर डिड यू लेट्स से यू नो नॉट कम आउट द वे यू वांटेड मे बी, तो क्या गड़बड़ हुई थी आपके हिसाब से? So my plan that the plan that I presented to them was, eventually I want to get into entrepreneurship, and doing an MBA would add skills देखो to my. ये अब मैं फर्स्ट आपको यहाँ पे बता दूं कि आई वुड नेवर रिकमेंड दैट एनीबडी प्रेजेंट्स दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई टेल यू, अनलेस मतलब आप एक बहुत क्लियर रोड मैप बता सकते हो उसको कि आप यहाँ जाके वहां जाके और रोड एंटरप्रेन्योर बनोगे, कैसे बनोगे। देखो ये एक मतलब ये एक बहुत ही वेग आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, एंटरप्रेन्योरशिप बताना मतलब यू हैव एट द आउटसेट साउंडेड आउट एन अलार्म। मतलब आपने अपने लिए एक, अगर हमसे सच पूछो तो एक गड्ढा तक खोद लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बताना है आपको वहां पे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के जाने के लिए तो यार वो 50 आपको लोग ऐसे बता देंगे कि जो बिना एमबीए के एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे बन गए हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको 50 गिना दूं अभी यहीं पे बैठे बैठे, हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री के दीपिंदर गोयल से लेके पता नहीं कौन कौन है, क्या नाम है उसका, अश्नीर ग्रोवर, और पता नहीं कितने लोग हैं यार जो कोई कोई एमबीए थोड़ी किसी ने किया है। वो भी आपको यही बोलेगा कि यार एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर ये जरूरत क्या है, बीच आपको 2 साल वेस्ट करोगे, 25 लाख रुपए वेस्ट करोगे आप सीधे से अपना आइडिया लो और उसको थोड़े से टेस्ट करके स्टार्ट करो, और बाद में ढूंढो, चल गया तो आपको फंड करने वाले मिल जाएंगे, जरूरत क्या है आपको एमबीए करने की। सो माय पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप आई वुड नेवर रिकमेंड एनीबडी मेंटेन्स एज हिज goal. ठीक है, you can always say that yes, once I am at that position where I am able to really make a difference to people's lives, or you know, I think that I can make a difference to in some way or the other, then I might think, you know, I might think ऐसे करके आपको बोलना है उसको। लेकिन ये प्रेजेंट मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भी कि आप उसको बोलो कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है इसलिए मैं एमबीए कर रहा हूँ। ओके, सॉरी आई डिडंट लेट यू कंप्लीट योर पॉइंट, प्लीज गो अहेड।
No, so that's all. Like, I just wanted to know, like, this is something that was suggested to me because this is something that I plan to do eventually in my life. Like, not immediately after the MBA, but किसी point पे कभी. But and this was also suggested to me by some teachers and uh वो like guiding me. So फिर देखो, मैं वो वही बात it, नहीं, मैं it डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो एक डायरेक्टर आपको बोल रहा है कि आप ऐसा करो, दूसरा डायरेक्टर, तो नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक. देखो, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं बोलता ये किसी को बोलने के लिए, makes sense, है ना. makes sense. मैं लॉजिक बताऊंगा आपको. मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बोलो कि ना बोलो. आप अल्टीमेटली, कुछ लोग फिर भी जाके बोलते हैं. देखो यार, जैसे आज मैं किसी से, मैं 10 लोगों से पूछूंगा ना, 10 लोग बोलेंगे अच्छा क्या, अच्छा तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा कब बनना है, सर एमबीए करने के 5 साल बाद. अच्छा क्या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है आपको? सर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट का या एक बहुत बढ़िया सर्विस का. यार मेरे भाई, 5 साल, यहाँ 5 महीनों में कंपनियों की शक्लें चेंज हो जाती, 5 महीने में कंपनी ऊपर की नीचे हो जाती है. 5 साल तो बहुत दूर की बात है. और आप वहां पहुंचोगे कैसे उस प्रोडक्ट, मतलब आप एमबीए करने के बाद में व्हाट स्किल्स यू वांट टू सी, यू वांट टू जॉइन इन कॉर्पोरेट टू गेन सम स्किल्स, एक्सपोजर, नेटवर्क, सो दैट यू अल्टीमेटली रीच योर एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्जेक्टिव. तो आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, उसके बाद में मतलब आप क्या क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसी तरीके की स्किल आपको मिलेगी, आप वो एंटरप्रेन्योरशिप 5 साल बाद उसी प्रोडक्ट में, उसी सर्विस में, और वो पता पड़ा वो कैटेगरी खत्म हो चुकी है उस टाइम तक. So there are so many variables these days. The world is so dynamic that we don't even know what is going to be remain 2 years down the line or 1 year down the line. तो we cannot say कि यार हमें इस एरिया में हमने अभी तक काम किया है, मुझे लगता है ये बड़ा एरिया है, यहाँ पे अभी तक बहुत बड़ा गैप है और लोग हैं नहीं यहाँ पे, एंड आई काइंड ऑफ क्रिएट समथिंग आउट देयर. वो चीज़ नहीं फ्लाई होगी, वो चीज़ नहीं फ्लाई होगी. आप अपना गोल, एक कॉर्पोरेट, आप अपना एक एक यू सी, आई मीन व्हाट आई एज आई एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप लिंक्डइन पे देखो, आपकी जो प्रोफाइल है उसके लोग आए बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस से करके कहाँ पे गए हुए हैं, क्या नहीं गए, आप उनके हिसाब से अपना बैक कैलकुलेट करो और देखो, और एक वो बनाओ कि हाँ यार ये एक ऐसी हाइट है या एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे मुझे पहुंचना है. एंड आई थिंक आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड बाय दिस प्रोफाइल और दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस, और उस पे कैसे पहुंचा जाए, वो रोड मैप अगर आप बनाओगे ना, तो आई एम श्योर यू वुड बी मच मोर सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द अदर पर्सन. You don't have to name the person. You just say that this is how. Let's say product management, somebody says यार I want to get into product management, कोई technical resource है, suppose you are in a techie field और आपको product manager बनना है, right? So you need to research also कि यार वो product management के लिए उसने क्या क्या किया, क्या skills दिए उसने, कौन सी जगह से क्या किया उसने. और ये कॉलेज, there are certain colleges which really train you well for a product management role in a company like Microsoft or in any other company. तो वहाँ वो लोग कैसे गए, क्या नहीं गए, तो वो सब आप जब करोगे ना, तब आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ यार इसको ऐसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उस लेवल की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, राइट. Right, sir. ओके, राइट. सो if there's no more further question, then let's talk about what kind of question, categories of question. मतलब आपको जो प्रिपरेशन अपनी करनी है, तो ये अलग अलग हेड्स में करनी है, राइट. यू नीड टू हैव वेरियस हेड्स अंडर विच you need to prepare. So obviously one is, this is a perennial standard question, TMAY. Tell me something about yourself. This is the start of everything, right? This is the beginning of everything. तो ये क्वेश्चन जो है, अब मे बी इन 80% ऑफ केसेस अब पूछते ही नहीं. ओके, आप किसी भी बड़े आईआईएम में जाओगे तो वो पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि उसको पता है कि ये आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आए हो. बट डज इट मीन कि हमें इसको तैयार नहीं करना है? नो, यू कांट डू दैट, बिकॉज दिस इज द जेनेसिस ऑफ एवरीथिंग, राइट. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो है, इसमें आप अपने आप को मे बी 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में या सवा मिनट में आपकी बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. नॉट रियली टेलिंग anything that is already known to the person by way of your form. I am XYZ, I have done my schooling graduation from XYZ institute, I have worked in XYZ company. No, वो तो सब उसके सामने ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, उसको थोड़ी सुनना है ये सब चीजें. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम एलिवेटर पिच बोलते हैं, राइट. आपने सुना होगा एक नाम, एलिवेटर पिच. एलिवेटर पिच मतलब उसमें आप अगर एक एलिवेटर में घुसे और आपका सीईओ साथ में है और वो सिर्फ अगले 2 फ्लोर ऊपर उतरने वाला है, 30 सेकंड में आपको कोई आइडिया उसको सेल करना है, हाउ वुड यू डू इट, राइट. सो दैट्स द एलिवेटर पिच. तो आपको अपनी एलिवेटर पिच बनानी है, समथिंग दैट लाइक अ हुक, कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ की तरफ उसको मोड़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो. करना है नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट यू कैन एटलीस्ट मेक एन एफर्ट कि आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो अचीवमेंट है उस डायरेक्शन में ये चीज चली जाए.
बिकॉज इंटरव्यू क्या है अल्टीमेटली, इंटरव्यू इज लाइक इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, राइट? वन पर्सन से समथिंग एंड द अदर टेक्स अ क्यू फ्रॉम इट एंड देन elaborates on it or counters it or takes it further and then this person also adds on to it या उसको जो भी करता है. तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है. इंटरव्यू भी वही है. आपने अपने बारे में कुछ बताया एंड सपोज इट रेजोनेट्स विद द अदर पर्सन, राइट? पता पड़ा किसी ने बोला यार मैं चेस प्लेयर हूँ, बढ़िया, तो वो भी चेस प्लेयर निकला, तो बस हो गया काम आपका. सी सेल्स अल्टीमेटली क्या है, अगर हम सेल्स की बात करें, जिसने भी सेलिंग की है आप लोगों में से किसी ने, अगर प्रोफेशनल सेलिंग, राइट, इन अ कंपनी एंड समवेयर आई एम सेइंग, तो एक चीज होती है रैपो बिल्ड करना, राइट? यू आर बिल्डिंग अ रैपो विथ योर कस्टमर व्हेन यू आर सिटिंग अक्रॉस. तो रैपो बिल्ड करने के लिए देयर हैज टू बी सम कॉमनैलिटी, राइट? आप हम जैसे कस्टमर, आई वाज इनटू सेल्स एंड आई यूज्ड टू काइंड ऑफ स्पेंड a lot of time trying to figure out कि इस पर्टिकुलर पर्सन जिस कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ इसके क्या इंटरेस्ट है, what kind of thing excites him, so that I can talk about that and be on his side. तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो let's say if you are a football fan, right, and you come across a person who is also a football fan, then suddenly जुगलबंदी हो जाएगी. तो इस तरीके से आपको अपना ये बनाना है. तो और ये ऑब्वियसली यू डोंट नो हु इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर वो वैसा निकल गया तो आपको फिर वो उस डायरेक्शन पे ले जाएगा. जैसे मैंने बहुत इंटरव्यू में देखा है कि देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम लेट्स से झांसी, राइट? तो उसने जैसे बोला कि आई एम फ्रॉम झांसी, द अदर पर्सन आल्सो, ये कैब इंटरव्यू की बात है, वो भी झांसी का निकल गया. नाउ दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट झांसी, राइट? सो द इंटरव्यू वेंट इन दैट डायरेक्शन फॉर 5-10 precious minutes and then the rapport got built and the person got through. उससे मतलब कोई और फालतू गिरेगा इधर उधर का कोई, क्योंकि उनके पास टाइम वैसे ही बहुत कम होता है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो है वो कहाँ पे क्या चीज काम आ जाए, कहाँ क्या चीज रेजोनेट कर जाए, वो नहीं पता. इसीलिए यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि कोई कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं बोलनी है आपको, राइट? कोई भी व्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं किसी इवेंट के बारे में, तो अपना उसमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी या कुछ वो लेके नहीं आनी है, राइट? यू डोंट हैव टू ब्रिंग इन राइट विंग आइडियोलॉजी, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, मोदी, राहुल गांधी, ये सब कुछ नहीं लेके आना है. क्योंकि पता पड़ा सामने वाला आप मोदी मोदी कर रहे हो, वो राहुल गांधी का फैन है, और या आप राहुल राहुल गांधी कर रहे हो, वो मोदी का फैन निकल गया, तो फिर हो ही गड़बड़ यहाँ पे. ओके, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. लेट मी टेक दैट. हाउ कैन अ फ्रेशर आंसर द बिलो essay, स्पेशली फॉर द लास्ट क्वेश्चन? टेल अस अबाउट योरसेल्फ, बिलीव्स, हाउ विल दिस एनरिच द कोहॉर्ट. ठीक है, इसके बात करेंगे हम. हाउ विल, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग, राइट? एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू. See, there are different ways of asking the same question. What value would you bring to the cohort, right? या why should we select you? ये सब एक ही क्वेश्चन है. तो हम देखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से उसको आंसर करेंगे. दिस विल ऑल्सो वी लुक एट इट. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, इसके बारे में सोचना है हमें, राइट? देन एकेडमिक्स के ऊपर हमने बात की है कि देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग. दोज हु जॉइन, अल्टीमेटली आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ सी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम. तो एक लिस्ट है. Now, I'm not saying that that's an exhaustive list, but let's say somebody is a computer engineer, somebody is a maths graduate, somebody is a commerce graduate, somebody is economics graduate, somebody is BSc physics. तो एक set of questions है जिसमें कि broadly 80-90% जो पूछा जाता है वो कवर होता है. तो आप वो लिस्ट लेके एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस्त, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आस्क कि भाई हम क्या सब्जेक्ट पढ़े, कितने सब्जेक्ट पढ़े, इतने सारे सब्जेक्ट थे, सारे थोड़ी पढ़ सकते हैं. हाँ, नहीं पढ़ सकते, एग्रीड, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स इन एनी फील्ड विच, क्योंकि देखो सामने वाला जो है, अब आपकी अगर कई बार देखो किस्मत के ऊपर कितना डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर उसी फील्ड का एक्सपर्ट निकल गया तो फिर आपकी मुश्किल, और सामने वाला अगर उस फील्ड का नहीं है तो आपके फायदे हैं. दे विल नॉट बी एबल टू ग्रिल यू. So there are a lot of things which depend upon. That's why see luck factor बहुत बड़ी चीज है इसमें. Okay, yes, we can definitely try to minimize the this roll of dice, but still थोड़ा तो होता ही है. Okay, वर्क एक्सपीरियंस में आपको बहुत कुछ मतलब इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, राइट? योर कंपनीज पोजीशन इन द इंडस्ट्री itself, right? Then the management of your company, the history of your company, the financials of your company, right? The plans of your company. आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर किसी रोल में काम कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी रोल तक रिस्ट्रिक्ट. बिकॉज MBA मतलब अल्टीमेटली क्या है? यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट you are interested in business, right? You are interested in business management. You are not
interested in just something which is related to just a very very narrow area of work in any company, तो आप कैसे डेमोस्ट्रेट करोगे? आप अपनी उस कंपनी के बारे में आपको A to Z, राइट, सब कुछ पता होना चाहिए. नॉट जस्ट दैट बट इवन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपने क्यों कोई कंपनी ज्वाइन की थी, क्यों उसको छोड़ा आपने, what let's say what are your achievements at this particular place, what are the challenges that you face, what's your day-to-day work, how do you collaborate with people, how do you handle conflicts within your team, how do you handle your relationship with your boss, what are some of the failures that you have here, what could you do better, all of those kind of questions you have to think. कुछ भी पूछ लेगा आपसे वर्क एक्सपीरियंस को लेके, राइट. एंड देन वी टॉक अबाउट योर जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस. सो नॉट जस्ट न्यूज बट व्यूज. यस, ये न्यूज नहीं है कि भाई ट्रम्प जी कह रहे हैं कि ब्रिक्स वालों, अगर तुमने एक नई करेंसी बनाई तो तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा. ये तो न्यूज हो गई, लेकिन वाई व्हाट, इसके क्या रेपरकशंस हो गए, क्यों कर रहा है, ब्रिक्स क्या है, राइट, व्हाट इज दिस न्यू करेंसी बीइंग टॉक अबाउट, व्हाट इज दिस डी डॉलराइजेशन दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इज इट रियली प्रैक्टिकल? क्या वाकई में डॉलर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एज द मेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड? क्यों नहीं किया जा सकता? अगर किया नहीं जा सकता तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अमेरिका इज फेसिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट मे बी एज इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी आर फेसिंग. हमारा डॉलर जो के अगेंस्ट रूपी जो है वो स्लाइड करते चले जा रहा है, 84.5 हो गया है अभी. कितना हो गया है, क्यों हो गया है, राइट? ऑल दिस, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ योर करेंसी लूजिंग वैल्यू, राइट? योर इंपोर्ट्स become more and more expensive. Your 85% of India's fuel is imported, oil is imported, right? So you spend a lot of foreign exchange on that. आप कहाँ से इंपोर्ट करते हो? ब्रिक्स करेंसी क्यों आ रही थी? Why is this even being talked about? तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस बिल्ड करेंगे. There'll be a daily kind of capsule. I'll suggest to you the resources that you should follow. वी विल सी. इसमें होता ही है कि एक स्टोरी का एक थ्रेड आपने एक बार पकड़ लिया, देन यू विल कीप फॉलोइंग इट. अभी क्या है, सडनली इफ आई काइंड ऑफ बोम्बार्ड यू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ब्रिक्स, ये वो सब, तो इट विल बी लाइक समथिंग ओवरवेलमिंग. मे बी फॉर सम ऑफ यू मे बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट, बट सम ऑफ यू मे फाइंड इट काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग कि सडनली अब मैं आपसे पूछ लूँ संभल मस्जिद के बारे में. वो संभल मस्जिद में अभी क्या हुआ? वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट थी, तो उसका क्या हुआ अभी? So lot of such events which are happening. सीरिया का हो गया, as I said. Then इंडियन इकोनॉमी, अभी जीडीपी हमारी सेकंड क्वार्टर में 5.4% होगी. और पहली बार जीडीपी क्या होती है, राइट? एंड देन जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंड देन व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, वेयर डू वी स्टैक अप, वेयर डू वी सी आरसेल्फ हेडिंग, हाउ डज, whether we should chase GDP, what is the relevance of GDP in today's this thing, एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है इससे. तो बहुत सारी चीजें सब लिंक्ड है, राइट? कॉप, अब एनवायरमेंट की बात होगी तो कॉप की बात आ जाएगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. अभी अभी सो UNFCCC है जो फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है, वो कैसे काम करता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस अकॉर्ड क्या है. तो वी विल नीड टू बिल्ड आर, सो देयर आर सर्टेन थीम्स. ओके, देयर आर सर्टेन थीम्स. अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ये एक थीम है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या इसके ओरिजिन है, क्या, व्हाट इज द करंट स्टेट, इज इट गोइंग टू बी एवर रिजॉल्व्ड, इफ नॉट व्हाट आर द चैलेंजेस. देन इजराइल हमास हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, राइट? इजराइल के साथ में जो ईरान का चल रहा है, इजराइल जो है वो लिबनान के ऊपर है. तो ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, what has led to this and what is going to be the outcome of all this. अभी चाइना जो है, चाइना इज अनदर एनिमल, राइट? तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. So all of these things will kind of pick up certain themes on a certain day, discuss. I'll give you some themes. You need to prepare. We will discuss at length on that so that आपको at least थोड़ी understanding build हो and you are able to form your views on that. Personality related questions, right? Your strengths, weaknesses, achievements, failures. इसमें भी कुछ भी पूछ लेते हैं वो, right? What are your regrets in life? और your achieve. So these are standard things. तो ये आपको अपने अपने बारे में सोचना है. इनके कोई स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं है. मेरे पास में कोई ऐसी स्टैंडर्ड वीकनेस और स्ट्रेंथ की लिस्ट नहीं है कि मैं आपको दे दूं कि आप टिक कर लो कि चलो ये 2 मेरे हो गए, ये 2 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए और ये 2 इसके तीसरे के हो गए. ऐसा नहीं है. देखो, हमारे बारे में मैं आपको एक चीज अगर बताऊं तो मेनी ऑफ यू माइट फील कि यार हमारे तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है.
हमने तो कोई झंडे ही नहीं गाड़े, हम तो कभी फर्स्ट नहीं आए क्लास में, हमें तो कोई मेडल भी नहीं मिला कभी किसी में, हमने तो किसी एक्स्ट्रा करिकुलम में भी नहीं किया। कोई बात नहीं, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों को ये सब चीजें रोक रही हैं, तो स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। आपको ये सोचना है कि यार हमने क्या किया है। एवरीबडी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दैट एवरीबडी among us has got some achievement or the other. It is just that we don't consider it an achievement because we look at achievement in terms of world. दुनिया अचीवमेंट क्या मानती है? कि एकेडमिक अचीवमेंट हुआ तो वो अचीवमेंट है, या कोई आपने किसी कंपनी में नौकरी पाली अच्छी सीटीसी पे तो वो अचीवमेंट। ये दैट्स नॉट द ओनली अचीवमेंट, राइट? There are so many other achievements that you could have had, right? You helped somebody out of trouble, let's say, or you provided support somewhere, where it was uncalled for or something. You made a difference to somebody's life. That could be an achievement. तो आपको सोचना है, और आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है ये जो क्लासिक डेफिनेशंस हैं अचीवमेंट्स की, उन्हीं से। ठीक है, आपके पास कोई मेडल नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू कैन डू एंड गो ऑन एंड डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, नथिंग लाइक दैट। तो आपको अपनी लाइफ में से ही ऐसी चीजें निकालनी है। आई एम श्योर सभी के होती है, बिकॉज आई हैव seen myself when I start talking to people about their, and I look at their answers and I ask them to then think in a different way, then they produce miraculous achievements. फिर अरे यार हमने तो सोचा ही नहीं इसको ऐसा, कि ये भी अचीवमेंट है। You just have to open your mind. तो ये सब चीजें आपको, ये इंट्रोस्पेक्शन, ओके, यू नीड टू थिंक about your whatever life events that you've undergone and whatever achievements है या failures है या regrets हैं जो भी हैं आपके, तो ये सब आपको लेके आना है, right? So don't think conventionally only. Okay, goal clarity. As I said, आपको short term, medium term, long term goal पता होना चाहिए अपने, कहाँ पे जाना है अल्टीमेटली हमें। ठीक है, किसी को अगर लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, फाइन, बट यू हैव टू देन स्पेसिफाई कि भाई मुझे, ठीक है, ऐसा कुछ अभी वो नहीं है, बट हाँ मे बी बिकॉज देखो आजकल फील्ड चेंज हो गई। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, स्टार्टअप वाली बात है, अब ये मतलब सी इट्स सो कॉमन नाउ, इट्स वेरी कॉमन। अर्लियर अगर हम देखें कि मे बी 5 or 10 years बैक ऑल्सो, पीपल हु वर लेट्स से checking their careers and then starting up something on their own and all were not too many. नहीं, जो कि सक्सेसफुल करियर अपने छोड़ छोड़ के और स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कम लोग थे। आजकल तो हर दूसरा आदमी करता है भाई। पीपल हु वर्क फॉर 5-10, even not even 5-10, they want to have a startup, right? Forget about 5-10 years. People right in the college also don't want to join a company and they want to have a startup. That's okay, fine. Nobody is stopping you from doing that. बट द पॉइंट इज कि आप क्या उस चीज को उस तरीके से बता, बिकॉज बहुत सारी चीजें सिचुएशनल होती हैं। पता पड़ा आप किसी कॉलेज में गए, वहां आपको ऐसे लाइक माइंडेड पीपल मिल गए, आपने कोई ऐसा आइडिया था जो था आपके अंदर, और 4 लोगों के साथ मिलकर आपने एक कंपनी बना ली एक कॉलेज के अंदर ही, और आपने बोला यार मेरे को तो ज्वाइन ही नहीं करना कोई, चाहे कैसी भी कंपनी आए, आई विल स्टार्ट अप ऑन माई ओन, फाइन। बट टुडे यू कैन प्रिडिक्ट दैट। तो आप ये नहीं बोल सकते उसको कि मैं तो वहां आ जाऊंगा और वहां पे एक स्टार्टअप बना दूंगा, ऐसा नहीं बोलूँ। यू शुड हैव अ गोल, राइट? हाँ यहाँ जाना है, मतलब वो बताने के आपको बताना ही है उसको, एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई इट। वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल, ठीक है, करियर लाइफ गोल्स फाइन, व्हाई एमबीए? इफ नॉट एमबीए देन व्हाट, राइट? बैकअप प्लान्स क्या है आपके, ये हमने बात कर ली। हॉबीज इंटरेस्ट आपकी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह क्या है, बिकॉज दे वांट अ वेल राउंडेड पर्सन, राइट? नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है, आपने कोई झंडे नहीं गाड़े, कोई बात नहीं। आप अपने अंदर ही सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है एंड हाउ यू कैन प्रेजेंट इट इन द बेस्ट मैनर, दैट्स इट। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप बोलते हो कि आई सिंग वेल, तो प्लीज यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि वो आपसे गाना गाने को वहां पे बोलें। ऐसा बोला गया कई लोगों, है ना, इफ दे हैव क्लेम दैट दे सिंग वेल देन दे बीन आस्क्ड टू सिंग। तो उस टाइम पे फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप तो बाथरूम सिंगर निकले, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इफ यू क्लेम समथिंग देन you better be able to demonstrate it if it is possible within that particular frame. सपोज करो आपने बोला डांस, कि मैं तो डांस इंडिया डांस में गया था या मैंने डांस से, तो उसने वो अपने फोन के ऊपर चला देगा। आप बोलोगे वो म्यूजिक कहाँ से लेके आएगा, क्या वो अपने फोन पे चला देगा म्यूजिक, करो डांस। तो वट एवर वी से वी नीड टू बी एबल टू बैक इट अप ऑल्सो, राइट? हवा में बातें नहीं करनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन सिंपली से दैट I love watching Bollywood movies. I love watching XYZ. It gives me happiness, pleasure. थोड़ा सा रिसर्च कर लो उसके ऊपर कि किस तरह की बॉलीवुड मूवीज आपको अच्छी लगती हैं। हो सकता है आपको परेश रावल
Wali or Akshay Kumar or Richard. Nothing wrong in that. Nothing wrong with that. You can say that. I mean, it amuses me, right? I whenever I'm down, I kind of have a rerun of those, and I feel so light. So, ठीक है यार, nothing wrong in that. See, all I'm saying is there should be something and there should be some logic behind it. जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े गिटारिस्ट ही हो या कोई बहुत बड़े पियानो प्लेयर ही हो. अगर होते तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं है उस कॉलेज को, फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाइए. एथिकल क्वेश्चंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जो अगर हम एसपी जैन का इंटरव्यू देखेंगे, सेकंड राउंड जो होता है, उसमें तो इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, वैल्यू बेस्ड ये वे और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो एथिकल क्वेश्चन होते हैं. यू हैव टू बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट दैट एथिक्स एंड ऑल, यू विल, भले ही वहां जाके कुछ भी करो, है ना. ये अलग बात है कि फिर आप अडानी बन जाओ या अडानी के ऊपर तो इल्जाम लगे हुए अभी. तो अगेन अनदर पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट the allegations of bribery by the SEC and the courts in the US. तो आपका क्या व्यू है? ये पूछ सकता है आपसे. हिंडनबर्ग के अलग अलग हिट्स होते रहते हैं इसके ऊपर, राइट. तो एथिकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, पजल्स पूछ सकते हैं, राइट. अनएक्सपेक्टेड भी कुछ भी पूछ सकते हैं. टॉक अबाउट एन इंस्टेंस वेयर यू डिच्ड योर फ्रेंड, ऐसा पूछा गया था एक से. अब वो मतलब ऑब्वियसली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चन, राइट. तो नरेट एन इंसिडेंट वेयर यू डिच्ड योर फ्रेंड. अब आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, तो फिर दैट साउंड्स अ लिटिल अनबिलीवेबल. तो आपको बताना भी है उसको, लेकिन इस तरह से बताना है कि इट डज नॉट पुट यू इन बैड लाइट. आई मीन ठीक है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन, राइट. एंड देन यू हैव टू से दैट ठीक है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन, आई एम आल्सो अ ह्यूमन, and yes, I ditched because of these factors. I didn't want to go where the person wanted to go, so I ditched the person. तो ठीक है, that's okay. तो ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड भी आपको कभी भी पूछ सकते हैं. So these are the other types of questions. Okay, so any questions so far on this? अभी तक जो हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर आपके दिमाग में कुछ अगर आ रहा हो और क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, तो पूछ सकते हैं आप. और इट्स कूल. नो क्वेश्चंस. ये भी एक क्वेश्चन है. शुड वी आस्क अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू? लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट इज योर व्यू? ये एक बहुत ही, अगेन, शुड वी आस्क ए क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू? बताइए आप, व्हाट्स योर व्यू? We should, that showcases the candidate's confidence. Okay. So how would you do that? Let's say if I ask you कि do you have any questions for us? Suppose मैं अहमदाबाद में बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ आपसे, मैंने एंड में बोला थैंक यू प्रियंका, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? तो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछोगे, किस तरह के नहीं? तो इसमें डूज एंड डोंट्स है. सो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स हियर? इसमें समथिंग अबाउट द कॉलेज. देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज ना पूछा जाए जो कि उसकी वेबसाइट पे या पब्लिक डोमेन में या कहीं पे भी अवेलेबल हो. इट पुट्स यू इन अ वेरी वेरी बैड लाइट. यस, डोंट आस्क स्पेसिफिक दैट इज ब्रॉडली अवेलेबल. यस, करेक्ट, प्रियंका इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि वो बोलेगा कि यार मैंने क्या है, इंक्वायरी काउंटर खोला है क्या? आप मेरी साइट पे है, आप देख लो. तो सी, मैं जो मेरे से कोई पूछेगा कि मुझे पूछना है कि नहीं पूछना है, तो मैं इसको यही बोलता हूँ कि देखो यार, आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो आप पूछो, है ना. और नहीं है तो कृपया चुप रहो. इट इज बेटर टू, जैसा कहते हैं ना, इट इज बेटर टू कीप द माउथ शट रादर देन ओपन द माउथ एंड रिवील दैट यू आर डम. तो वो नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर आपके पास कोई है स्पेसिफिक क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही सिचुएशनल क्वेश्चन है और बहुत ही इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक क्वेश्चन है. इसका एक कोई जनरलाइज वो नहीं बन सकता, और डिपेंड करता है कि किस तरीके से फ्लो हुआ है डिस्कशन टिल द एंड. तो आप मेरे से पूछोगे आप क्या, कैन यू क्रिएट सम 4-5 क्वेश्चंस? ठीक है, आई कैन क्रिएट, बट देन जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन वहां पे रिलेवेंट उस टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे, और वेदर दे विल रियली इम्पैक्ट और नॉट. वो मैं बोल नहीं. ठीक है, वी विल डिस्कस एज वी गो अलोंग. आई विल श्योरली सजेस्ट यू सम ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क एट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, बट
you have to take a call at that instance कि उससे कुछ add value हो रही है या नहीं हो रही है ना? तो so again, there's no black or white clear-cut answer here. Sometimes it is good to ask a question, but only something which is not available or something which doesn't show that कि आप थोड़ा सा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो. Just like you are asking question for the sake of it. ऐसा भी नहीं साउंड होना चाहिए, right? It should flow naturally as if you are really kind of enjoying the conversation and you would want to know more about something. तो ठीक है वो. Otherwise, it's better to say no, thank you so much, sir. It was great interacting with you and I wish you all a good day. Thank you for your time. ऐसा करके आप निकल सकते हैं वहां से अगर कुछ नहीं है तो. Okay. All right. Where do I see myself in 5 years? If you ask for more stupid question, please do. So on a light side, इस तरह से आपको बोल सकता है. Okay. Ask something that might add value. How would you rate my? No. Please don't ask this question. Okay. So there is a suggestion here. How would you rate my interview on a scale of 10? 0. अब बोलो क्या बोलोगे आप? Would you start crying? Or would you start laughing? Or what would you do? Suppose you ask me this question, how would you rate my interview on a scale of 10? I'd say 0. देखो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है. Or where according to you did I lack? So I'm not a feedback mechanism here. I'm not a customer complaint feedback that I'll tell you where did you lack. See, ये सब क्वेश्चन बहुत डेंजरस है, नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना आपको. अच्छा, when will you declare? अच्छा, do you think I will make it? ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पूछने हैं. ओके, दीज आर स्ट्रिक्ट नो. ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने हैं आपको. देखो एक चीज समझो, वो वहां पे आपकी सर्विस के लिए नहीं बैठा हुआ है ना, कि आप उससे पूछोगे कि अच्छा मैं अगले इंटरव्यू के लिए क्या अवॉइड करूं, पिटफॉल्स, क्या चीज मैंने अच्छी करी, क्या चीज खराब करी, है ना. ये सब चीजें नहीं करनी है हमें, डेंजरस चीजें हैं. ओके, ऑलराइट, बट एटलीस्ट गुड. सी, it's good that you are coming out with it and at least you are asking. ये बहुत important है ना. So you need to, देखो, however stupid we might sound, that's okay. It is within the 4 walls. तो आज अगर आप नहीं पूछोगे और आप अपने अंदर रखोगे कोई चीज और आप सोचोगे कि यार I might sound very stupid, then that's a wrong attitude. Okay, however stupid you might sound, यार कोई बात नहीं, आज stupid sound करोगे ना, कल से तो आप भी समझदार हो जाओगे. तो the point is that should not hold you back. जो people I've seen, people who are extremely capable, but they don't kind of, they are not reluctant to ask any questions, चाहे वो कितना ही stupid हो. Okay, तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मतलब, I mean, simplest example I can give it. Let's take the example of Trump. I mean, I was just reading the other day, Trump और Elon Musk का कोई interaction चल रहा था. So Elon Musk has provided Starlink, in Ukraine. But obviously, Trump is the first thing that he wants to do is to stop this Ukraine-Russia war. So Trump और इसकी कोई डिस्कशन चल रहा था तो उसने Starlink के बोला. तो Trump, what is Starlink? Now, अब कोई आदमी सोच सकता है कि यार ये कैसा प्रेसिडेंट बन रहा है अमेरिका का, इसको Starlink ही नहीं पता. तो ठीक है यार, that's what he is. He is not. I mean, he is not supposed to know everything. Nobody is supposed to know everything. तो आप अगर कुछ पूछ रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे, और ओनली थिंग इज राइट फोरम नहीं, राइट. ओके, फाइन. सो ये कुछ FAQs हैं. आई थिंक इट्स लिटिल प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट. कुछ चीजें इसमें इंटरेस्टिंग हैं विच लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू सो दैट यू कैन आई आस्क देम एनी क्वेश्चंस. हो गया हमारा कवर. am I expected to be thorough on what is in the institute bulletin, prospectus, website? Not thorough, but broadly you should know what the institute stands for, what are its differentiating factors, what are its illustrious alumni. बहुत important है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको उसके alumni के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ के जो धुरंधर लोग हैं वो कहाँ गए हैं. You should know, because पूछते हैं कई बार. आपको उस इंस्टीट्यूट का लोगो पता होना चाहिए. आपको उस इंस्टीट्यूट का कोई अगर कोई सम टैगलाइन है अगर उसकी, तो आपको पता होनी चाहिए. SP जैन में तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, वो पूछा गया है, तो ये आपको पता. इंदौर में मैं पूछा हुआ है ये. इज इट नेसेसरी टू हैव एन एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल? नॉट एट ऑल. इनफैक्ट समटाइम्स इट इज लुक्ड एट इन अ नेगेटिव वे आल्सो. सारा टाइम लिंक्डइन पे ही बैठे रहते हो,
कुछ काम नहीं है करने को आपको, तो there is no necessity to have any kind of LinkedIn active profile or anything. Please be very clear on this. Okay? आप LinkedIn पे कोई आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जा नहीं रहे वहां पे. इनफैक्ट LinkedIn पे इन्फ्लुएंसर बनता कौन है जो दे आर नॉट एबल टू डू टू मच. सॉरी टू काइंड ऑफ साउंड लाइक दिस, बट बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. अब ठीक है, इन्फ्लुएंसर बन गए अच्छे, दैट्स डिफरेंट इशू, बिकॉज देर आर अ मिलियन पीपल हु ट्राई टू बी इन्फ्लुएंसर, बट आउट ऑफ दैट ओनली 3 or 4 सक्सीड. तो ठीक है, वो दे सक्सीडेड. Can we ask a general question like what according to your prerequisite knowledge aspect? No, no, not at all, not at all. आप उनसे ये सब चीजें नहीं पूछ सकते कि किसी एमबीए के लिए क्या चीज जरूरी है या क्या चीज नहीं है. नो, यू शुड नो, यू शुड नो. So you shouldn't ask this question to them. Okay. How am I? Okay. How to answer why I want to join their B school? हाँ, तो their B school में आपको उसके specific पता होने चाहिए. What advantages that B school gives? विच विल यू ज्वाइन. ओके, तो अब ABC में है, जिन लोगों को तीनों जगह हो गया है उनसे पूछा जा रहा है A में या B में कि यार आपका अगर सब जगह हो गया तो आप कहाँ ज्वाइन करोगे. तो इसके आंसर को हम, कैन आई बी ऑनेस्ट इन आंसरिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वी गो अलोंग. दैट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट if let's say you got calls from all the great colleges, then a not so great institute, let's say, मतलब अगर सपोज करो पैकिंग ऑर्डर में ABC खड़ा हुआ है वहाँ पे, या L भी है ना, तो L में आप इंटरव्यू देने गए, आपके पास में सारे कॉल हैं, वो बोल रहा है यार आपके पास में ABC कॉल है तो आप इंटरव्यू देने आए यहाँ पे, तो क्यों, और अगर हमने आपको सिलेक्ट कर लिया तो क्या आप ज्वाइन करोगे, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए. राइट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इसमें थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक आंसर लगेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एज वी गो अलॉन्ग, कि ताकि वो बुरा ना माने उस टाइम पे. क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है ABC में आप इंटरव्यू दे रहे हो, जरूरी नहीं कि ये आपको ले जाए, हो सकता है आपको यहीं पे जाना पड़े. राइट. तो आप उसको ऐसा जवाब नहीं दे सकते कि जो उसको चुभ जाए या उसको डायरेक्टली लगे कि हाँ यार ये तो मेरे को इन्फीरियर समझ रहा है. तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली बना सकते हैं ऐसे ऐसे आंसर आप. ओके, सो देयर इज अ वे टू आंसर दैट क्वेश्चन. Why should we select you or not select you? Yes, this is very important. ये वही बात है कि what value you will add to the cohort. तो आपको पता होना चाहिए कि how, see, MBA is all about diversity. मतलब MBA cohort in any institute is all about diversity. और आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है. They are kind of, they don't want the same kind of people. They want people from different backgrounds. तो अगर जहाँ पे इतना अच्छा डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस है तो आपके लिए आसान हो जाता है. आप बता सकते हो कि जो आपके यूनिक स्किल सेट्स हैं, जो आपके यूनिक बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से ऐड करेगा वैल्यू. नॉट सिलेक्टिव में आप बोल सकते हो कि आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू शुड नॉट सिलेक्ट मी, because to my mind I check all the boxes that are needed for any kind of institute. However, if there is some factor which could be beyond my control, then maybe you won't select me, but at least I mean I cannot think of any reason which is there within my control of why you should not select me. तो इस तरह के आंसर भी हम तैयार करेंगे कि उसको इस तरह का आंसर क्यों देना है, कैसे देना है. एंड व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूट में आप बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. इलॉन मस्क के साथ ना मार्स पे सबसे पहले आप ही के इंस्टीट्यूट लेके जाएंगे ऑन अ लाइटर साइड. If you do not know what when they ask me a question but the answer strikes me later, can I give the answer then? अरे सर रुको रुको, आपने जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था उसका आंसर मुझे अभी याद आ गया. ये सब नहीं करना है प्लीज. ओके, यू हैव टू बी इन द मोमेंट. यू कांट टेक देम बैक टू द कि ओ सडनली दे विल से दैट यार देन नेम योरसेल्फ ट्यूबलाइट ना, फिर आप अपना नाम ट्यूबलाइट रख लो. फिर आपको अगर कोई 4 मिनट पहले पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर अभी स्ट्राइक हो रहा है और आप यहाँ रोक के हमें अभी आंसर दे रहे हो उसका, तो ये तो गलत बात है. तो ऐसा नहीं कर सकते हम. If I need some time to think to answer, can I request? Yes, yes, absolutely, by all means. But then don't expect them to wait for 5 minutes or 10 minutes. अरे अभी सर सोच रहे हैं, अभी दिमाग में आ ही रहा है, बस रुक जाओ जरा, बस तो 1 मिनट और सर. ऐसा नहीं है भाई. थोड़ी सी मतलब जस्ट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ इफ यू आस्क्ड फॉर सम टाइम देन एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट 20-30 सेकेंड्स उसमें आपको आंसर करना है. They asked me which institute would you join. I am what, sir? Why they asked this? Because Delhi is not comparable. Who says IIT Delhi is not comparable with IIM Sirmour? एक मिनट एक क्वेश्चन आया भाई कि लास्ट ईयर IIT दिल्ली में उनसे पूछा कि आप IIM सिरमौर ज्वाइन करोगे या IIT दिल्ली. Why I asked this? Because IIT Delhi is not comparable. It is obvious I will join IIT Delhi. Yes, it is obvious you will join IIT Delhi. Yes.
दे आस्क्ड बिकॉज यू आर सी, कुछ लोग आईआईएम के टैग को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें आईआईएम का टैग चाहिए। आईआईटी से वो आईआईएम टैग को ज्यादा ऊपर मानते हैं मैनेजमेंट में। तो वो आपसे शायद यही सुनना चाह रहा होगा कि आप आईआईटी को यहाँ पे प्रेफरेंस दोगे या आईआईएम को। ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली है और वो आईआईएम सिरमौर है, तो बाय एनी मीन्स आईआईटी दिल्ली वुड बी इन मच हायर इन पेकिंग ऑर्डर, राइट। तो इसको कैसे डिप्लोमेटिकली आंसर बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग आवर सेशंस, कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर को आपको। ओके, बट यू कैन टेल देम, नो इश्यूज। If the interview do not let me complete an answer to my question, then does it mean they are not decided? No, no, no. देखो ये लोग बहुत impatient होते हैं कई बार। देखो एक चीज समझो, आप सपोज करो मैं इंटरव्यू हूँ और आप धड़ल्ले से मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दिए चले जा रहे हो फ्लुएंटली, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। ओके, अरे यार ये कैसा आदमी है, मेरे हर आंसर का जवाब दिए जा रहा है, हर क्वेश्चन का सवाल जवाब दिए जा रहा है। आई विल ट्राई टू कॉर्नर यू, आई विल ट्राई टू पिन यू। मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि जिसका आंसर आप ना दे पाओ, तब मेरा ईगो सेटिस्फाई हो। तो आप समझो, तो आप अगर उसके क्वेश्चन के आंसर फटाफट दिए जा रहे हो और आपको वो रोक रहा है, तो इट्स नॉट एज इफ ही इज ट्राइंग, ही इज डिसाइडेड नॉट टू सिलेक्ट यू। इट इज बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन टू विच यू डोंट हैव एन आंसर, एंड देन ही विल फील वेरी हैप्पी अबाउट हिमसेल्फ। ये एक ह्यूमन साइकी मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे क्वेश्चन के सारे आंसर आप फटाफट फटाफट दिए जा रहे हो, तो मतलब कि यार आई एम नॉट अप टू द मार्क, देन यू आर गॉट अ यू आर वन अप ऑन मी। तो लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन वेयर आई कैन बी वन अप ऑन। तो इसलिए जो आप मेरे को आंसर दिए जा रहे हो फटाफट, मैं उसको बीच में रोक रहा हूँ। ये बहुत कॉमनली होता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है और आप बढ़िया बढ़िया देते हो, वो आपको रोक देगा बीच में, और आपको लगेगा कि यार ये मेरे को ये पता था और ये मेरे से पूरा नहीं सुन रहा है, और ये मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसका आंसर मुझे पता नहीं है। ऐसा हुआ है किसी के साथ में? आई एम श्योर हुआ होगा जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिए होंगे। तो वो लोग देखो, वो लोग लॉन्ग ड्रॉन आंसर्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वो सुनना नहीं चाहते हैं। उनको अगर समझ में आता है कि आपको ये पता है, तो फिर वो आगे चले जाएंगे। तो इसलिए डोंट थिंक दैट दे हैव डिसाइडेड नॉट टू सिलेक्ट यू। ओके, दिस इज रॉन्ग। विल दे एक्चुअली नो द करेक्ट आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे आस्क? नो, नॉट एट ऑल। दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस, बट yes दे आर वेरी सीजन्ड प्लेयर्स। एक बात मान के चलो कि जो अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट के, जो टॉप इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी इंटरव्यूअर्स ऑफ नॉट सो टॉप इंस्टीट्यूट्स हु आर वेरी 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 मीडियोकर। और उसमें मैं SIBM पुणे का भी नाम लूंगा, उसमें मैं NMIMS का भी नाम लूंगा। कई जो इंटरव्यूअर्स होते हैं बहुत मीडियोकर होते हैं। लेकिन अगर आप टॉप IIMs की बात कर रहे हो, ABCL KI, ये सब, दे आर ऑल वेरी वेरी सीजन प्रोफेशनल्स, एंड they have a range which is very very wide. So they know what they are talking about, and they know the answers also to most of the question, but not every question. Okay, कई बार हमें नहीं भी पता होता है। In fact, I want to hear your perspective. In fact, I don't even know the answer to that question, but I want to know your answer. तो जरूरी नहीं है कि उन्हें हर चीज का आंसर करेक्ट पता हो, क्योंकि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं सकता जिसे हर क्वेश्चन का आंसर पता हो। It's not possible. Can I pull a fast one? Not at all. Can I guess? If you are guessing, then you have to very, very specifically say that you are guessing. You can ask his permission. Sir, can I hazard a guess? Sir, I'm not very sure about this, but vaguely I think I remember. Can I make a guess? If you ask and then make a guess, and even if it is wrong, it's fine. But without asking, if you make a guess and it is wrong, you are way off, then that's very, very negative. Can I refuse to answer a question? No, you can't refuse. You can simply say that I don't know the answer to this question. But you can't say that, no, don't ask me this. ये मेरी इज्जत के अगेंस्ट है या मेरी शान के खिलाफ है ऐसा क्वेश्चन का आंसर करना, ये आप मेरे से नहीं पूछ सकते। ऐसा कुछ नहीं बोलना है वहां पे। कैन आई से आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक द आंसर इज, हाँ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। यू से दैट आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक इट कुड बी दिस। इस तरह से आपके आंसर को हेज करना है। कैन आई लीड द इंटरव्यू पैनल? यू कैन नॉट लीड द इंटरव्यू पैनल, यू कैन ओनली लीड इट थ्रू योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन, जब आप उसको उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो जो आपकी स्ट्रेंथ। हाउ ऑनेस्ट शुड आई बी व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस? I would say as honest as you can carry it. Simple answer. I'm not saying you have to be 100% honest. I'm not saying you have to be 100% a liar or 100% fibber or 100% make believe. But you have to, honesty का एक percentage होता है। कितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी हुई है? How many of you have watched the movie Interstellar? No one? अरे यार, come on.
नो वन हैज वॉच्ड, एक ने देखी इंटरस्टेलर में, हाँ स्वप्निल ने भी देखी, नाउ पीपल आर रीडिंग। तो इंटरस्टेलर में वो जो रोबोट एक उसने बना के ले गया था ऊपर, ठीक है, जो उसको तो एक ऑनेस्टी इंडेक्स होता है उसमें, राइट, ऑनेस्टी इंडेक्स, तो ऑनेस्टी इंडेक्स 100% होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ह्यूमन बींग्स अगर ऑनेस्टी 100% इंडेक्स रखेंगे तो वो नुकसान ही होगा आपका, इट कुड हैव इट 90% और 80%, राइट, बट द होल थिंग इज यू शुड बी एबल टू कैरी इट। पकड़ा नहीं जाना चाहिए, झूठ बोलो लेकिन पकड़े ना जाओ, ओके, बिकॉज दे दोज गाइज आर प्रीटी स्मार्ट। So I'm not saying that you have to be 100% honest, but you have to be as much honest as you can carry it. How much time can I take to answer question? ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। अगर कोई पजल है या कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दे दी है या फिर कोई केस दे दिया है, गेस्टिमेट दे दिया, तो आप टाइम दे सकते हो, बट अदरवाइज routine questions you can't take time to answer, right? You have to be upfront. What is the maximum number of times I can say? I do not know. Any number of times. कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 9 क्वेश्चन गलत बोलो, लेकिन एक क्वेश्चन जो उसने पूछा वो आपने सही आंसर दिया और आपका हो गया। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 9 क्वेश्चन के आंसर सही दिए और एक क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, उनका नहीं। सो देर इज नो सच रूल। हाँ, ये नहीं है कि यार आप मतलब कुछ भी नहीं बोल के आओगे और सोचोगे कि मेरा हो जाए। एंड अगेन एज आई सेड, इंटरव्यू इज नॉट 100% ऑफ योर दिस थिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनिमम परसेंटेज कोई मैक्सिमम परसेंटेज नहीं है। What if they ask me irrelevant questions? No problem. They will ask you irrelevant questions. What if they will definitely ask you irrelevant questions. But you will have to basically handle it in a proper way. Okay, you can't say that this is irrelevant because as a manager, nothing is irrelevant, as I said. It हर चीज का, हर एक चीज से कुछ ना कुछ, जैसे आपने अगर पढ़ा हो बटरफ्लाई कि when a butterfly flaps its wings in Amazon forest, rainforest in Brazil, then you should know what can be the repercussions of it. तो इररेलेवेंट कुछ भी चीज नहीं है। ओके, यू हैव टू सिंपली जस्ट, मतलब आपको इररेलेवेंट है तो ऐसा बोलना नहीं इररेलेवेंट, यू कैन सिंपली से दैट सी आई कांट रिलेट दिस विद व्हाटएवर यू आर आस्किंग, विद व्हाटएवर आई नो, सो मे बी आई विल स्किप इट, ऐसा करके आप बोल सकते हो। शुड आई रिएक्ट टू एनी ऑफ द एक्ट्स? नो, यू शुड नॉट रिएक्ट, यू शुड कीप इट कूल, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आफ्टर अ वॉक, इफ द इंटरव्यू आस्क मी टू गो आउट एंड वेट आउटसाइड, फाइन, नो प्रॉब्लम। हो सकता है खाना, कई लोग ऐसे रूम में घुसते हैं, वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तो ठीक है, दे विल टेल यू that please wait outside, that they will say that okay you can sit here, just hang around, no problem, let us finish our lunch, कोई बात नहीं। सी, आप हर चीज में मीनिंग मत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। what happens is that there are so many students I've seen, they try to look for meanings in every situation. No, नेचुरल रहो ना, नेचुरल रहो। ऐसा, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन अपॉन यू कि अगर उन्होंने आपको बाहर भेज दिया या वो आप बैठे हुए और वो खाना खा रहे हैं, ठीक है यार, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, टेक इट एज इट यू आर गोइंग टू मीट एनीबडी, नॉट एन इंटरव्यू, जस्ट लाइक दैट। आई एम आस्क्ड टू गेट अप एंड स्विच ऑन द फैन व्हिल द इंटरव्यू इन प्रोग्रेस, दैट्स फाइन। उसको गर्मी लग रही है, उसने आपको उठा के बोल दिया कि फैन ऑन कर दो, कर दिया आपने। दे ऑफर मी टी कॉफी, टी कॉफी जनरली मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को। कॉफी वॉफी ले सकते हो आप। टी कॉफी में क्या है, कई बार, सी वी आर वेरी नर्वस देयर, वी आर वेरी एंक्शियस देयर, एंड वी माइट स्पिल टी कॉफी हियर और देयर, और वी माइट काइंड ऑफ मेक सम ब्लंडर हियर देयर, कुछ आपकी जो सोशल वो है वो गैप हो सकती है वहाँ पे। तो से दैट, थैंक यू सर, आई जस्ट हैड व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, सो आई वुड नॉट लाइक टू, सो थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। बस ठीक है, वो बोलेगा आई इंसिस्ट, तो आप बोल सकते हो कि मतलब रेजिस्ट कर सकते हो, एंड देन यू फिर नो नो आई आई रियली इंसिस्ट दैट यू मस्ट टेक दिस। ठीक है सर, इफ यू आर इंसिस्टिंग देन ले लेते हैं, क्या है, टेक इट। सो सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, नो नथिंग राइट और रॉन्ग, बट मतलब आपको कई चीजें जो है वो जान करके की जाती हैं कि आपको अनसेटल करने की कोशिश की जाएगी कि आप अपना जो है नॉर्मल सोचने का तरीका छोड़ दें और यू स्टार्ट feeling overawed by the situation. So don't get overawed by the situation. Don't think that, अरे यार ये इंटरव्यू ठीक है, take it as you are going to have a conversation with the person. But of course, within the limits. They tell me that I do not have the right profile. No problem, sir. I don't have the right profile. If you think that way, I will definitely go and introspect very, very deeply as to why you say that I don't have the right profile. And I'll definitely try to develop that so that next time I don't have to hear this. Fantastic answer. क्या problem? They ask me that if I'm on the panel, will I select myself?
See, as far as I know, I think I check all the boxes. I think I am as good as, if not better than anybody else. And definitely I would, if I'm on the panel, I would definitely select myself. मतलब आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है किसी भी एंगल से कभी भी. You have to think that you are in the race and you are very much in the race as good as anybody else. That's it. All right. एक आध और कुछ ले लेते हैं and then we'll wind up. What does the following mean? They tell me I'm not going to be selected. Nothing. It means nothing. I've seen and heard so many cases where people have been told they are not going to be selected and they were selected, and then there are people have been told that they are going to be selected and they were not selected. So this means nothing. They asked me if I cheated while writing Sunak. No, of course not, sir. If I was cheating, then I would have been caught. The invigilators are so strict there. I trust the system. I cannot dare to even cheat. They tell me that I don't know nothing. Sir, I'll definitely introspect on this. I'll definitely try to figure out as to why, what makes you say this. And I'll definitely try to overcome all of that. बस यही बोल सकते हो आप, और क्या बोल सकते हो. बट देखो इसमें क्या है, आपको सिर्फ वो स्ट्रेस में लाने की कोशिश की जाएगी और आपको स्ट्रेस में नहीं आना है. They do not ask me questions and pay no attention to me. Fine, you sit with a smile on your face, no problem. They ask me how much money I'm willing to pay for admission to the school. You say obviously absolutely nothing. I'll pay the fee, the legitimate fee, whatever is there. I'll definitely pay that. I'm willing to pay that, whatever it takes. But beyond that, obviously nothing. All right. So I think we'll wind up the session as discussed quite a lot. So any questions if anyone has or any point before we wind up the session, or कुछ भी जो भी आप पूछना चाहें, if you have any question for me or anything. बताइए. Did this session help you in any way clear some of the thoughts, or if at all you had any doubts or anything in mind? All right. So what do I take it? Insightful. Okay, chalo, thanks. So somebody at least says insightful. All right. Okay, so that's it for today. Thank you, and you can connect with me on WhatsApp as to the next the way forward. And I look forward to having you all on the course, right? And let's work together to make it a big success. All right. So thank you so much and have a great night. Bye-bye. See you.